Namaskar. I, Kartavya Pratap Singh, welcome you all to this wonderful session. Let me introduce my family, Dakshi. Dakshi is a movement that seeks to reawaken the ancient wisdom knowledge system of India. Through this movement, we strive to bring ancient knowledge to this modern world. This includes the study of ancient texts and practices, engaging in discussions, and conducting research, debates, hosting lectures, participating in competitions and workshops, and more. By doing so, the movement hopes to make ancient knowledge more accessible to everyone and to bring it to the forefront of today's society. That's why the motto of this research-based organization is also Sanskriti Gyan Ki, which means culture of knowledge. And sir, let me tell you, every session of Dakshi starts from from Saraswati Vandana. So for Saraswati Vandana, I would like to call Prachi to come and sing Saraswati Vandana. Namaste, sir. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्वापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। Jai Ma Shardi. With this, I would like to introduce you all from our guest. And today we have with us Dr. Prashant Kumar Shahi. Namaskar, sir. Dr. Prashant Kumar Shahi is an assistant professor at Kirorimal College of Delhi University. He is also the member of Kartavya, the Civil Service Society, DAPSOC, the Debating Society, Annual Magazine Committee, Research Council, and Career Development Cell of Kirorimal College, Delhi University. He had pursued bachelor's from University of Allahabad, Masters in Pol Science from University of Delhi, MPhil and PhD from Jawaharlal Nehru University. He is also interested in many fields like international relations, public administration, multilateralism, and Indian political thought. This is all about Dr. Prashant Kumar Shahi. So, sir, please say some words. Thank you. Thank you for this lovely intro, and thanks to the team of Dakshi for having me. And on the onset, I would like to thank the organizers and the entire team for bringing all the individuals and all the dignitaries who have been part of this course on this particular platform. Thank you so much. So, मुझे जो बात करने के लिए कहा गया है, अच्छा, टेल मी वन थिंग, द ऑडियंस इज लार्जली अंडरग्रेड स्टूडेंट्स. Yes. Okay. And I will be speaking bilingually. Will that work, or should I speak only in English? No, sir. हम लोग bilingually बात कर सकते हैं. ठीक है. Okay. तो ठीक है. The economic and political ideas in ancient Indian Shastras. That's what I was supposed to speak upon. But when we are going to speak on such subject, or when we are going to learn such subject, it is important that we unlearn what has been taught to us for several decades and for last few centuries.
because when we are going to dwell into a subject like Indian political thought, it means that we are going to get into a discourse which is not digged largely or not researched from a very well vantage point. So we already are living in an era where social sciences, जिसमें political science, history, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं. इन विषयों को पढ़ने का हमारा जो तरीका है, जो मेथड है पढ़ने का, वो लार्जली वेस्टर्न मेथड है. और जब मैं ये बोल रहा हूँ वेस्टर्न मेथड, तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ ये लिखी हुई बात उस पर ही भरोसा करेंगे, वही हिस्ट्री मानेंगे. दूसरा, हिस्ट्री की परिभाषा, जैसे हम जब इतिहास कहते हैं तो जो घटित हुआ वो इतिहास है, लेकिन जिसका लिखित विवरण नहीं है उसको इतिहास मानते नहीं है. तो क्या हमको ऐसा मानना चाहिए कि 2000 वर्षों का इतिहास ही इतिहास मात्र है, या फिर 2000 साल से पुराना भी इतिहास हो सकता है? जैसे अभी हम दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली के पास में ही सिनौली है, तो सिनौली में हमको 4500 वर्ष पुराना चैरियट मिल रहा है, अगर रथ मिल रहा है, तो हम कैसे कह दें कि 2000 साल से ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है? तो हम ये नहीं मान सकते. लेकिन वो इतिहास जो लिखा हुआ नहीं है, उसको पढ़ने का, उसको समझने का तरीका क्या होगा, ये हमें तभी समझ आएगा जब हमने जो सीखा उसको अनलर्न करेंगे, क्योंकि हमने जो सीखा उसमें लिखित इतिहास को इतिहास माना गया, राइट? सो देन द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी नीड टू अनलर्न to learn the actual and the right way of doing history. I'm saying doing history. Doing history का मतलब applied aspect of it, right? Since we have taken the subject for today is about ideas, विचार के बारे में है, तो हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि विचार हम किसको बोलेंगे, परिभाषाओं को समझना पड़ेगा. और Indian political thought जिसको कहते हैं, वो समझना पड़ेगा कि what is Indian political thought. So these are three different terminologies: Indian, political, and thought. Whenever I teach in classes, जब मैं classes ले रहा होता हूँ undergrad students के साथ, तो मैं उनको भी ये बताता हूँ, क्योंकि ये पहला step है. अगर आप ये नहीं समझेंगे तो इसके ऊपर कितनी भी बड़ी ये इमारत बना देंगे, बिल्डिंग बना देंगे, वो बिल्डिंग बहुत मजबूत नहीं होगी. तो इसलिए we need to understand that what do we mean exactly by Indian political thought. So let me tell you that when we say Indian or Bharatiya, it means the time and space. I'll explain it further. So time and space, Indian का मतलब होगा time and space. दूसरा जो शब्द है वो है Indian political. So what is political? Political is nature, right? So आपने पहला एक time and space के बारे में बात करी, फिर आप जो nature है, किस तरह का विचार पढ़ने जा रहे हैं, तो नेचर जो है उस विचार का जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नेचर है राजनीतिक. सो आप पॉलिटिकल पढ़ने जा रहे हैं. यहाँ पर हमने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों का है, तो द नेचर विल बी इकोनॉमिक ऑल्सो एंड पॉलिटिकल ऑल्सो, द कंटेंट मैटर ऑफ टुडेज टॉक. एंड देन थॉट. थॉट एक्चुअली इज द प्रोसेस, बिकॉज थॉट इज नॉट लिमिटेड और इट हैज नॉट स्टॉप्ड समवेयर, इट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट. थॉट इज अ प्रोसेस दैट गोज ऑन, राइट? हम जब भी सोचते हैं कुछ, तो हमने कुछ सोचा, वो एक आइडिया हो सकता है, लेकिन वो आइडिया के ऊपर जब हम बिल्ड करते हैं अपने आइडियाज के ऊपर दूसरे आइडियाज को, या अगर कोई और आइडिया पहले से है, उस आइडिया को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और क्रिटिसाइज करने के बाद उस आइडियाज में संशोधन कर रहे हैं, उस आइडिया को और वृहद कर रहे हैं, उस आइडिया को बड़ा कर रहे हैं, तो फिर वो आइडिया जो है धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होते होते, या एक स्कूल से दूसरे स्कूल तक ट्रांसफर होते होते, या एक विचारक से दूसरे विचारक तक ट्रांसफर होते होते, वो आइडिया विचार या थॉट में कन्वर्ट होता है, राइट? सो देन I mean the set of ideas or a line of ideas is what you call the thought, right? So Indian political thought में जब हमने कहा time and space, Indian का मतलब, तो what does it mean? हमारे यहाँ जब भी आप हम सभी अपने घर में कुछ पूजा अर्चना करते हैं या पूजा कराते हैं, आप सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रहे हैं अपने घर में, या किसी भी प्रकार की कथा करवा रहे हैं, तो जो गुरु है, जो कथा करने के लिए आए हुए हैं, वो शुरुआत कैसे करते हैं? तो ही बिगिंस बाय इंट्रोड्यूसिंग कि आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं वो पूरा भारतवर्ष से शुरू करके और कहाँ तक आप बैठे हुए हैं वहां तक लेकर आते हैं, राइट? तो इसका मतलब ही लोकेट्स that this is the space that we are sitting in, and then
वो तिथि की बात करते हैं कि कौन सी तिथि है आज की, वो टाइम है। सो बेसिकली हमारे ट्रेडिशन में ये बात है कि हम टाइम एंड स्पेस को कंसिडर करके ही कोई भी बात शुरू करते हैं, राइट। सो व्हेन वी आर सेइंग इंडियन पॉलिटिकल थॉट, हम सबसे पहले टाइम एंड स्पेस की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हम जिस भी पॉलिटिकल थॉट की बात अभी करेंगे उसको उसके टाइम और स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में ही समझेंगे तो उसका असली अर्थ समझ आएगा, राइट। सो इंडियन का मतलब, अब जब मैं कह रहा हूं टाइम एंड स्पेस, तो इसका मतलब एक चीज और समझनी है आपको, जो कंट्रास्ट में समझोगे तभी समझ आएगा। और ये अनलर्न करने वाली जो बात मैं कह रहा था वो क्यों जरूरी है ये भी समझना पड़ेगा। जब आप पाश्चात्य शैली से या पाश्चात्य दृष्टि से देखते हैं तो टाइम एक लीनियर कॉन्सेप्ट है, एक रेखा में चलने वाला कॉन्सेप्ट। 1 2 3 4 ऐसे चलता है टाइम। मतलब सन 2001 2 3 4 5 6 आप 25 तक पहुंच गए, तो ये एक रेखा में बढ़ता हुआ कॉन्सेप्ट है, राइट। बट भारतीय दृष्टि से टाइम एक रेखीय दृष्टि नहीं हो सकती, एक रेखीय गति से बढ़ने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। भारत में टाइम का की जो दृष्टि है या समय को समझने की जो दृष्टि है वो चक्रीय है, जिसको साइक्लिक कहते हैं, राइट। आप जिसका जन्म हो रहा है वो अपना जीवन जीने के बाद पुनर्जन्म में भी जाएगा, राइट। तो इसका मतलब उसका जीवन, अब पाश्चात्य दृष्टि से देखोगे तो जो व्यक्ति पैदा हुआ वो एक दिन मर जाएगा, राइट, और उसका जीवन वहां समाप्त। लेकिन भारतीय दृष्टि से ऐसा नहीं है। आपके पूर्व जन्मों का प्रताप या आपके पूर्व जन्मों का फल आपको इस जन्म में मिलेगा, और इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं उसका फल अगले जन्म में भी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कहीं से शुरू होकर कहीं समाप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम जिसकी बात आइंस्टाइन करके चले गए ना एनर्जी की, उस फॉर्म में शरीर को देखने का दृष्टि भारत में रहा, इसीलिए हम समय को चक्रीय दृष्टि से देख रहे हैं। तो मतलब एक व्यक्ति पैदा होगा और मर जाएगा, इतनी ही यात्रा नहीं है उसकी। वो व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को लेकर इस धरा पर आया है और इस जन्म के कर्मों को लेकर अगले जन्म में जाएगा, एंड वाइस वर्सा। वैसे ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहेगी। और अब ये टाइम का अंडरस्टैंडिंग हो गया। हमारी दृष्टि से यानी भारत की दृष्टि से टाइम और स्पेस अलग अलग नहीं हो सकते। टाइम और स्पेस की जो अभी आपने ये मनाया ना 9 संवत्सर, जिसको हम वर्ष प्रतिपदा कहते हैं, तो हमारे यहाँ वर्ष प्रतिपदा का मतलब ये नहीं है 1 जनवरी को नया वर्ष शुरू हो गया, वैसा नहीं है। हमारे यहाँ वर्ष प्रतिपदा, ये जो टाइम सिंगुलैरिटी की बात करते हैं ना, टाइम एंड स्पेस सिंगुलैरिटी, आजकल क्वांटम फिजिक्स और इन सब चीजों में बात हो रही है। हमारे यहाँ वो 9 संवत्सर का मतलब वैसा ही है कि भारत में अलग अलग स्पेस में ऋतुओं के आधार पर हम कैसे नववर्ष मनाएंगे। और नववर्ष मनाने का मतलब सिर्फ डेट का चेंज हो जाना नहीं है, ऋतुओं के चेंज हो जाने से लेकर आपके जीवन शैली तक में परिवर्तन आ जाना, सब कुछ नया हो जाना। और ये पूरे भारत में एक साथ हो रहा है, अलग अलग नामों के साथ हो रहा है, अलग अलग तरीके से हो रहा है, पर हो सब जगह रहा है एक साथ, राइट। तो टाइम एंड स्पेस का वो वर्ष, भारत वर्ष जिसको कह रहे हैं हम। अब भारत वर्ष में जब वर्ष जोड़ रहे हैं तो वर्ष बेसिकली टाइम को डिनोट करता है और भारत आपके स्पेस को डिनोट करता है। भारत जिसका मतलब बहुत सारे अर्थ हैं वैसे भारत के, पर यहाँ हम जिस अर्थ को ले रहे हैं भारत का, उसका मतलब होता है भा और रत, 2 शब्दों को मिलाकर बना हुआ शब्द। भा का मतलब ज्ञान और रत का मतलब लगा हुआ, यानी अ स्पेस where everybody is continuously involved into attaining the knowledge, right? So एक ऐसा देश जो ज्ञान अर्जित करने में लगा हुआ है, right? So ये हमारी भारत की पुरानी परंपराओं के आधार पर ऐसा रहा। तो जिस देश का नाम ही ज्ञान अर्जित करने की धरा के रूप में रखा हुआ है, उस देश में ज्ञान की परंपरा कैसी रही होगी, ये चर्चा करने के लिए हम बैठे हैं आज। अब ये ज्ञान की परंपरा बहुत ज्यादा विस्तृत है, उसमें हमको क्या करना है, तो उसमें हमको आज राजनीतिक और आर्थिक, ये 2 विषयों के बारे में क्या चर्चा रही है हमारे राष्ट्र में, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक। तो अब देखो, ये भी बहुत बहुत ज्यादा वृहद है ये विषय, तो इसमें से किसी एक सब्जेक्ट को ले रहे हैं अभी, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों मर्ज होती है, उसको कहते हैं गवर्नेंस। So for now we'll be taking governance. उसके बाद अगर क्वेश्चन आंसर्स में और भी आते हैं तो करेंगे। Governance I'm taking here for the sake of making you understand, right? So there's one more thing that I want to highlight is
जैसे भारत में आप सबने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में खूब पढ़ा होगा, उसमें एक विषय आता है कि भारत में महर्षि अरविंद, शिवाजी और ऐसे अन्य बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने भारत में स्व के जागरण की बात की है। मैं पिछले कई दिनों से इस बारे में पढ़ रहा हूँ, इसलिए दिमाग में बैठा हुआ ये चीज है, तो ये मैं यहाँ भी कनेक्ट कर रहा हूँ। तो वो स्व के जागरण की जो बात भारत में की गई है बार बार, वो स्व आखिर क्या है, राइट, और उसके खो जाने की वजह से क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, राइट, वो भी हम ये पूरी प्रक्रिया के दौरान एक बार चर्चा करेंगे, राइट। सो देन हम शुरू करते हैं अपने आज के विषय को, और कितना पीछे जा सकते हैं हिस्ट्री में, वहां से शुरू करते हैं। तो हमको जो हिस्ट्री ज्ञात है वो कहाँ तक जाती है, वो अगर टेक्स्ट के आधार पर देखेंगे तो वेदों तक जाती है, और अगर आर्कियोलॉजी के आधार पर देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तक जाती है ना। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक टेक्स्ट्स, ये दो आधारों पर देखें अगर, तो हम डिबेट्स के आधार पर अपने गवर्नेंस के सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे। अभी वैदिक सिस्टम में दो तीन चीजें मिलती हैं जो आपको गवर्नेंस के एग्जाम्पल्स या गवर्नेंस के ट्रेट्स को बताती हैं। मेजर जो इंस्टीट्यूशंस मिलते हैं उसमें दो तरह के इंस्टीट्यूशन वैदिक टेक्स्ट्स में मिलते हैं, एक को कहते हैं सभा और दूसरे को कहते हैं समिति। ये बेसिक सी बात है, आप सबने किया होगा। और लगभग उसी समय जो सिविलाइजेशन हमको दिखाई देती है, बहुत अंतर है वैसे समय में, पर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आसपास यही दोनों दिखती हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जो जिस भी नाम से हम जानते हैं। तो अभी तक हम ये समझ रहे थे कि वो लगभग 2500 साल पुरानी सभ्यता है, लेकिन जो वर्तमान में हमको नई जानकारी मिल रही है उससे पता चल रहा है कि लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता शायद रही होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन। वैदिक का हमको नहीं पता है कितनी पुरानी है उसका हिस्ट्री, क्योंकि वो श्रुतियों पर आधारित परंपरा रही है, तो श्रुतियों का इतिहास कितना पीछे जाता है वी डोंट नो, राइट। दो परंपराएं मुख्य रूप से रही हमारे यहाँ, एक श्रुति परंपरा और एक स्मृति परंपरा, है ना। श्रुति परंपरा का आशय है कि जिसमें द नॉलेज इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन थ्रू द लोक स्टोरीज और द श्रुति, यानी सुन करके। आपके पास लिपियां नहीं है, स्क्रिप्ट्स नहीं है जिससे लिखा जा सके, तो कैसे होता है, जैसे घरों में हुआ ना, मे बी फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपने घर में दादी नानी होती हैं, वो कहानियां सुनाती हैं, है ना। तो एक, अब रामायण अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो भी उसको रामायण पता है। कैसे पता चलता है? क्योंकि आपके घर में उसकी चर्चा हो रही है, राइट, समाज में उसकी चर्चा होती रहती है। तो रामायण को किताबों ने जिंदा रखा ऐसा नहीं है, रामायण को समाज ने जिंदा रखा, है ना। तो वैसे ही ये जो नॉलेज है उसको समाज जीवित रख रहा था, जिसको हमने श्रुति परंपरा कहा, राइट। बट उसी श्रुति परंपरा की जगह पर जब एक थोड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम आया, जब लोगों ने ये सोचा कि अब हम कैसे ये ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने के लिए कोई सिस्टम बनाते हैं, तो वो सिस्टम बना स्मृतियों के आधार पर, राइट, जिसमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, दो प्रमुख स्मृतियां हैं जो आमतौर पर लोग जानते हैं। तो वो स्मृतियां कैसे एक दूसरे से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रही थी, उसके लिए गुरुकुलों का सिस्टम रहा, राइट। तो गुरुकुल्स में जो चीजें पढ़ाई जाती थी, या गुरुकुल में जो ज्ञान को प्रिजर्व किया जाता था, राइट। स्मृतियों को भी ध्यान रखेंगे कि वो भी वही समय है जब लिपियों का आविष्कार नहीं हुआ है। अभी स्मृतियों के समय में भी लिपियां नहीं आई हैं, लेकिन स्मृतियों को अगर आप समझने की कोशिश करें तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है मेमोयर्स, मेमोरीज के आधार पर। सो श्रुतियां जो हैं वो लोक में प्रचलित कथाओं के माध्यम से प्रचलित हैं, जिनको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। स्मृतियां, उसके लिए आपने एक सिस्टम बनाया कि लोग याद करें, शिष्य जो हैं वो याद करें और गुरु उनको याद करवाएं, राइट। सो एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जिसके माध्यम से आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ज्ञान स्थानांतरित कर रहे हैं, राइट। सो ये दो सिस्टम्स उस समय में थे, और इन सिस्टम्स के माध्यम से जो गवर्नेंस का सिस्टम आया उसमें दो चीजें दिखाई देती हैं, एक सभा और दूसरी समिति, राइट। तो समिति जो थी वो बड़ा सिस्टम हुआ करती थी, समिति में ज्यादा लोग हुआ करते थे और सभा छोटा सिस्टम हुआ करती थी। अब आज की दृष्टि से समझेंगे तो समिति आपको लगेगा छोटा, समिति का मतलब आज की दृष्टि में कमिटी हो सकता है, तो कमिटी इज अ स्मॉलर वर्जन ऑफ सभा। लोकसभा तो बड़ा चीज होता है, उसके अंदर समितियां हैं, लोकसभा के अंदर, है ना।
जैसे पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं बहुत सारी, तो कमिटीज आर स्मॉलर सेक्ट्स, स्मॉलर कंपार्टमेंट्स, बट बैक देन समितीज were the larger compartments and sabhas were the smaller compartments. Now we don't have any written text or evidence to understand or to showcase that what exactly was happening in sabha and samiti. We only have this literary texts within the Vedas and Upavedas to understand that these kind of institutions were existing, right? तो सभा और समिति जैसे ये चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। और उसी समय हमको जो सिविलाइजेशन दिखाई देती है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उसमें हमको सिंस वी डू नॉट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, उनका कुछ लैंग्वेज हमको मिला है बट हम अभी उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए वी डोंट अंडरस्टैंड। बट हमको जैसे जो शहर मिले हैं, उन शहरों में दो तरह की, एक अपर सिटी और एक लोअर सिटी जैसा सेटलमेंट दिखाई देता है ना। सो इससे ये पता चलता है कि आपको गवर्नेंस का कुछ तो ऐसा सिस्टम था जिसने सेटलमेंट्स को कम से कम गवर्न किया होगा, जिसने शहर कैसे बनाए जाने हैं या कैसे बनते हैं शहर, उसके लिए बहुत मैनेजमेंट का अच्छा सिस्टम रहा होगा। बेसिक चीजें मोहनजोदड़ो के बारे में आपको सब पता है कि कैसे शहरों की बसावट किस तरह से थी वगैरह वगैरह, लेकिन उसमें भी हमको गवर्नेंस का कोई फुल फ्लेजेड स्वरूप दिखाई देता हो ऐसा नहीं है। सिर्फ इतना ही दिखता है कि सेटलमेंट्स दो तरह की हैं, जिससे आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शहर में हो सकता है कि लेयर्ड सोसाइटी रही हो, जिसमें कुछ जैसे आज हम कहते हैं कि जिनके पास कोई एक पॉश एरिया हो जाता है और कोई एक कॉमन एरिया या जनरल लोगों की सोसाइटी की बसावट होती है, तो वैसा शायद रहा होगा। और पॉश एरिया अगर रहा होगा तो इसका मतलब ये कि दो जिसको पॉश एरिया बोल रहे हैं उनके पास किसी प्रकार की पावर्स तो एक्स्ट्रा रही होंगी। वो पावर्स या तो धन की वजह से आ रही होगी, नहीं तो हो सकता है उनके ज्ञान की वजह से आ रही होगी, या हो सकता है युद्ध की कला की वजह से आ रही होगी, राइट, या हो सकता है सर्विस की वजह से आ रही हो। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये भी समझने की बात है एक बार, कि आपके पास चार जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार गुणधर्म है, वास्तव में चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट। और इन चारों कैरेक्टरिस्टिक्स ने दुनिया में चार अलग अलग समय में डोमिनेशन रखा है अपना अपना। तो हालांकि वो किसी और समय में बात करेंगे, उसमें जाएंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चंस में अगर किसी को पूछना होगा तो हम कर लेंगे बात। सो दीज वर टू डिफरेंट डाइवर्जिंग सेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस मॉडल्स इन द टाइम ऑफ ब्रॉन्ज एज, जिसको आप ब्रॉन्ज एज कहते हैं हिस्ट्री में। उस समय में हमारे पास ये दो चीजें भारत में मिलती हैं, एक ब्रॉन्ज एज में वैदिक सभ्यता मिलती है और एक दूसरी वैदिक सभ्यता या कह लीजिए वैदिक टाइम्स, और दूसरा जो मिलता है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन मिलता है। उसके बाद हमारे यहाँ एपिक्स का एरा आता है, द एरा ऑफ एपिक्स जिसको कहते हैं, जिसमें गाथाएं, महागाथाएं लिखी गई। अब उसमें क्या दो चीजें मिल रही हैं आपको, किस तरह के दो गवर्नेंस के मॉडल्स मिल रहे हैं। मैं ये कंपैरेटिव एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि समझने में आसान होता है और आपको इंटरेस्ट थोड़ा समझ आएगा कि कैसे दोनों चीजें डाइवर्ज करती हैं। तो जो दो महान ग्रंथ हमको मिलते हैं भारत में, वो एक महाभारत और एक रामायण, राइट। इन दोनों में हमको गवर्नेंस के क्या मॉडल्स मिलते हैं, राइट। मैं बहुत पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स नहीं कह रहा हूँ, गवर्नेंस कह रहा हूँ इसीलिए क्योंकि गवर्न आप करेंगे तो उसमें इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स दोनों आएगी। मैं मॉडल्स पर बात कर रहा हूँ आपसे। तो रामायण में जो गवर्नेंस का मॉडल मिलता है वो एक तो जैसे महाभारत हमको पता है कि शांति पर्व में भीष्म ने युधिष्ठिर को बताया, वो एक मॉडल स्पष्ट दिखता है। पर रामायण में आपको कहाँ दिखाई देता है, तो बाल कांड में दिखाई देता है कुछ हद तक, जहां पर भगवान राम को सिखाया जा रहा है कि शासन कैसा होना चाहिए, राइट। और उसके बाद पूरी रामायण में, जिसको हम आज कहते हैं ना राम राज्य, तो राम राज्य की बहुत स्पष्ट परिभाषा आज भी किसी के पास नहीं है, लेकिन अगर हम समझें तो हम ये समझ पाएंगे कि भगवान राम ने अपने जीवन भर सिर्फ इसी बात पर उनका जीवन टिका रहा, और जिसके कारण हम उनको महापुरुष कह सकते हैं, या जिसके कारण उनको हम ये कहते हैं कि भगवान राम का जो जीवन था वो ये कहते हैं ना, हम सबको फॉलो करने लायक, जो फॉलो किया जा सकता है, मानव द्वारा फॉलो किया जाने लायक जीवन भगवान राम का जीवन रहा होगा। क्यों था वो ऐसा? क्योंकि भगवान राम ने जो ये हैं जो कानून है जिनको कहते हैं, जिनको लॉज कहते हैं, लॉज जो बने हुए हैं वो सबके लिए एक जैसे हों, चाहे वो भगवान हो, वो राजा हो या प्रजा हो, सबके लिए एक जैसे हों, वो फॉलो किया जाए। जो कह दिया गया, जो लिखित या जो वो है
जो समय, उस समय का जो भी कानून है वो फॉलो किया जाना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, इससे ज्यादा ऊपर कुछ नहीं। यानी धर्म, धर्म से ऊपर कुछ भी नहीं, ये मानना। तो जैसे अगर भगवान राम को, और ये जानते हुए भगवान राम ये जान रहे हैं कि ये गलत है, उसके बाद भी उनको वो फॉलो करना ही है, क्योंकि वो धर्म के अधीन है। राजा हमेशा धर्म के अधीन है, ये मान लेना। और इसके उदाहरण हमको कहाँ कहाँ मिलते हैं? एक तो ये जब कैकेयी ने ये बताया कि आपको जंगल जाना है, भगवान राम को क्या ये नहीं पता था कि वो ठीक नहीं है? वो जानते थे उचित नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जंगल जाना चुना, क्योंकि ऐसा कह दिया गया था, एक वचनबद्ध होना, राइट, जिसको अब पूरी रामायण किस आधार पर चलती है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, राइट। तो अब प्राण जाए पर वचन न जाए, ये जो मूल मंत्र है रामायण का, कि यदि ऐसा कह दिया गया कि करना है तो करना है, मतलब आपका जो दायित्व है, आपका जो क्या कहते हैं उसको, कर्तव्य है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं, राइट। तो दायित्व और कर्तव्य का बोध होना और उससे ऊपर कुछ भी नहीं होना, ये वो समय है जिस समय आप कह रहे हैं कि राज्य ऐसा होना चाहिए। पर उस राज्य की एक फीचर अगर आप निकालेंगे तो भगवान राम अपने उस जीवन में कभी बहुत खुश रहे हों, ऐसा उदाहरण कम मिलता है। हमेशा ही भगवान राम ने वंचित जीवन जिया, दूसरों के लिए जीवन जिया। पूरी रामायण में भगवान राम का जो जीवन है वो भगवान राम दूसरों के लिए ही जी रहे हैं। लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये है कि भगवान राम ने बाकी सभी लोगों को प्रसन्न किया, प्रसन्न रखा। भगवान राम के राज्य में प्रजा जो है वो प्रसन्न है, प्रॉस्परस लाइफ जी रही है, राइट। सो राम राज्य की जब हम बात करेंगे तो उसमें राजा के हित की बात न होकर प्रजा के हित की बात होगी। और राजा की बात क्या, तो राजा अपने कर्तव्य की तरफ परायण होगा, तो वो राम राज्य होगा जिसमें प्रजा प्रॉस्परस होगी। लेकिन एपिक्स के एरा में दूसरा एपिक है महाभारत, राइट। अब महाभारत में युधिष्ठिर दिखते हैं कर्तव्य परायणता की तरफ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वो कहते हैं कि यदि अधर्म मजबूत हो जाए और धर्म की स्थापना के लिए यदि आपको कोई ऐसा मार्ग लेना पड़े जो आप अदरवाइज नहीं लेते, तो भी आपको धर्म की स्थापना के लिए वो मार्ग लेना चाहिए। यदि आपको युद्ध की आवश्यकता है अपने ही लोगों से, सोचो कैकेयी ने कहा कि आपको राज्य छोड़कर वनगमन करना है, भगवान राम वनगमन कर गए। लेकिन महाभारत में ऐसा नहीं होगा। महाभारत में यदि ये बताया जाएगा कि प्रजा की सुरक्षा के लिए, प्रजा की अच्छाई के लिए भगवान के लिए आवश्यक है कि वो युद्ध करें, न कि युद्ध छोड़कर चले जाएं, तो वो युद्ध करेंगे, अपनों के खिलाफ जाके युद्ध करेंगे। जबकि भगवान राम अपनों के खिलाफ नहीं जाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे उस समय, राइट। युद्ध तब करेंगे भगवान राम जब सारी सीमाएं क्रॉस हो जाएंगी। तो ये डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है महाभारत और रामायण में। टू डाइवर्जिंग वर्जन्स ऑफ गवर्नेंस का जो मॉडल है वहां पर गवर्नेंस। अब महाभारत में किस प्रकार का गवर्नेंस दिखता है जो भीष्म युधिष्ठिर को बताते हैं, तो उसमें एक राजा को कैसा होना चाहिए वो बताते हैं। राजा को फिर वही चीजें आती हैं जो श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कही कि आप निमित्त हैं, राइट। आप जो कर्म है उसको करना पड़ेगा आपको, और आप फल की चिंता भी किए बिना कर्म करें, राइट। निष्काम कर्म करने की बात। और जो व्यक्ति है, व्यक्ति अपने आप में साध्य न होकर व्यक्ति निमित्त मात्र है, ना साध्य है ना साधन है, जबकि रामायण में ऐसा नहीं है। तो ये दो चीजें आ रही हैं, दो अलग अलग डाइवर्जिंग व्यूज आ रहे हैं एक ही समय में, जो एपिक्स का एरा है, राइट। और तो ये दो अलग अलग व्यूज हो गए जिसमें आपने ये देखा कि अलग अलग तरीके से गवर्नेंस के मॉडल्स आपको एपिक्स में क्या दिखाई दे रहे हैं, ठीक। जिस समय की हम बात कर रहे हैं, जो आयरन एज जिसको कहते हैं, तो ब्रॉन्ज एज हो गया, उसके बाद हमने एपिक्स देख लिया, अभी आयरन एज जिसको कहते हैं। उस समय क्या हो रहा है, आइडिया ऑफ मात्स्य न्याय प्रिवेल कर रहा है भारत में। मात्स्य न्याय किसको कहते हैं कि एक बड़ी मछली जो छोटी मछली को खा लेती है, राइट। तो अब मात्स्य न्याय से बचने के लिए किस तरह की चीजें आती हैं भारत में,
तो मात्स्य न्याय से बचने के लिए वो चीजें आती हैं कि आप धर्म की स्थापना करेंगे, धर्म होना चाहिए। और धर्म क्या करता है? धर्म प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने दायित्वों का बोध कराता है। धर्म का मतलब धारण करना है ना, ध्री धातु से निकला हुआ शब्द धर्म। तो हर व्यक्ति को इस बात का आभास हो कि उसका रोल क्या है, उसकी भूमिका क्या है, उसका दायित्व क्या है। जब ये एहसास हर व्यक्ति को होगा तो मात्स्य न्याय की स्थिति से बच सकेंगे, राइट। और ऐसी स्थिति में जो राजा है उसका धर्म क्या होगा? उसका धर्म होगा ये इंश्योर करना कि मात्स्य न्याय की स्थिति न हो, राइट। अब मत्स्य न्याय की स्थिति न हो, इसके लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह के मॉडल्स की बात की। उनमें से दो हमने अभी डिस्कस किए। एक रामायण में डिस्कस किया गया है, मत्स्य न्याय नहीं हो इसके लिए क्या, तो इसके लिए राजधर्म, राइट, इसके लिए भगवान जैसा राजा। और मत्स्य न्याय से बचने के लिए जो महाभारत में बात की गई वहां भी राजधर्म है, लेकिन वहां राजा अधर्म की तरफ या हिंसा की तरफ भी जा सकता है, देख सकता है। धर्म की स्थापना करने के लिए यदि आपको कोई ऐसा मार्ग भी लेना पड़े जो उचित प्रतीत नहीं होता है प्रथम दृष्टया, तो वो भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आप नहीं है जो मार्ग चुन रहे हैं, मार्ग तो चुने हुए हैं, आप केवल निमित्त हैं। तो आपको उस मार्ग पर चलना है, राइट। तो ये दो डाइवर्जिंग व्यूज मत्स्य न्याय से बचने के लिए महाभारत और रामायण में दिखाए गए। ठीक, अभी हम क्या करते हैं, ये जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं वो ये है कि लीनिएज कैसे बनता है। एक मतलब हम अचानक से कौटिल्य की बात करने लग जाएं तो वो ठीक नहीं है, और कौटिल्य के बाद सीधे फिर ना कौटिल्य से पहले कुछ ना कौटिल्य के बाद कुछ, तो समझ नहीं आएगा। अभी जो हम जैसे वेस्ट में जब आप समझते हैं तो वेस्ट में बोलते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल को, राइट। एरिस्टोटल को क्यों बोलते हैं? एरिस्टोटल को इस हद तक बोलते हैं कि देयर कैन नॉट बी एनी नॉलेज इन सोशल साइंस which is non-Aristotelian, right? या तो आप एरिस्टोटल प्रो एरिस्टोटल होंगे या एंटी एरिस्टोटल होंगे, बट आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल पाएंगे जो एरिस्टोटल ने नहीं बोला है, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, वेस्ट का जो ज्ञान की परंपरा है उस परंपरा में एक थ्रेड दिखाई देता है जो एक विचारक को दूसरे विचारक से कनेक्ट करता है। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में हम पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हम बीच से उठाकर किसी एक विचारक की बात तो करते हैं, पर हम कैसे एंशिएंट टाइम से वर्तमान समय तक एक विचार की यात्रा में चल रहे हैं ये कनेक्ट नहीं कर पाते, राइट। विचार ट्रैवल कैसे करता है वो कनेक्ट नहीं कर पाते। जैसे हम शुरुआत में बोले कि भारत में समय की चक्रीय अवधारणा है, राइट। टाइम एंड स्पेस एक साथ हैं, इंटीग्रेटेड हैं, सिंगुलैरिटी है। तो ऐसे में जो विचार है वो भी तो यात्रा करेंगे ना, एक के बाद दूसरे स्टेप में जाएंगे। तो वो तो हम अगर नहीं एस्टेब्लिश कर पाएंगे तो इसका मतलब हमारे यहाँ विचार की शून्यता रही है किसी समय में। तो आज का जो मेरा अपना उद्देश्य लेकर जो मैं आपके बीच में बैठ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं कैसे ये एस्टेब्लिश कर पाऊं कि वैचारिक शून्यता कभी नहीं रही है, राइट। इसीलिए मैंने ब्रॉन्ज एज से शुरू किया है और अभी हम पहुंचे कहां तक हैं, ब्रॉन्ज, आयरन और अभी एपिक्स तक पहुंचे हैं, मोहनजोदारो और इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं वहां तक पहुंचे हैं, राइट। उसके बाद हमको दो चीजें और दिखाई दे रही हैं, एक तो मनुस्मृति और दूसरा कौटिल्य, राइट। मनुस्मृति और कौटिल्य, मनुस्मृति कब लिखी गई हमको नहीं मालूम है। कौटिल्य के बारे में कुछ आइडिया है, बहुत सारे विचारकों में मतभेद है कि कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य के ये जो गुप्त साम्राज्य स्थापित किया उन्होंने उसके पहले से लिख दिया गया होगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो उसके बाद लिखा है उन्होंने। तो कौटिल्य वाज बेसिकली अ प्रोफेसर इन द तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो अब उस समय उन्होंने जो लिखा कौटिल्य ने अपने पहले अध्याय में अर्थशास्त्र के पहले अध्याय का पहला सेंटेंस वो लिखते हैं, सैल्यूटेशंस टू बृहस्पति एंड शुक्र, राइट। बृहस्पति और शुक्र को सैल्यूटेशंस या प्रणाम करते हुए शुरुआत करते हैं, और उसके आगे वो और कम से कम 15-20 मनीषियों का, ऋषियों का नाम लिखते हैं, और वो कहते हैं कि यहाँ इस किताब में या इस टेक्स्ट में जो भी ज्ञान लिखा गया है, इट इज नॉट प्रोपाउंडेड बाय मी, द ज्ञान ऑलरेडी एग्जिस्टेड and I may have been adding a new layer to what exists already, right?
सो बृहस्पति और शुक्र को सबसे पहले प्रणाम इसलिए किया कि भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान का जन्म ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति और शुक्र से हुआ है। अब बृहस्पति और शुक्र कौन है? तो बृहस्पति और शुक्र क्रमशः देवताओं और असुरों के गुरु हुआ करते थे। बृहस्पति देवताओं के गुरु और शुक्र असुरों के गुरु, राइट? The interesting fact is that both of them, बृहस्पति and शुक्र, were pupils of the same guru. एक ही गुरु के शिष्य थे, राइट? बाद में वो डाइवर्ज होते हैं और अलग अलग जगहों पर पहुंचते हैं। तो बृहस्पति देवताओं के गुरु बनते हैं और शुक्र असुरों के गुरु बनते हैं। पर यहाँ पर ये नहीं समझना है कि असुर मतलब राक्षस या असुर मतलब बुरा, ऐसा नहीं। एक ही प्रकार के दो डाइवर्जिंग जातियां कह लीजिए, नृजातियां कह लीजिए, एथनिसिटीज या कम्युनिटीज कह लीजिए, राइट? क्योंकि आपने देखा है समुद्र मंथन हुआ तो सुर और असुर दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हैं, राइट? बाद में वो डाइवर्ज करते हैं बहुत ज्यादा, उतना डाइवर्जन बहुत बाद में हुआ है, राइट? सो ये अब किस तरह के ज्ञान का शुरुआत यहाँ से हो रहा है, तो जिसको दंड नीति आज कहते हैं हम, दंड नीति की शुरुआत माना जाता है कि शुक्र से होती है, राइट? और दंड कितना महत्वपूर्ण है ये इससे समझते हैं कि इन्होंने, कौटिल्य ने जिन दो चीजों को अपने अर्थशास्त्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है उनमें से एक दंड है, राइट? सो दंड नीति ये शुक्र का प्रोपाउंड किया हुआ ज्ञान जो दंड नीति के रूप में आगे दिखाई देता है, राइट? वैसे ही बृहस्पति, तो बृहस्पति ने क्या प्रोपाउंड किया? बृहस्पति का प्रोपाउंड किया हुआ जो विषय है वो है धर्म, राइट? तो धर्म प्रोपाउंड करते हैं, धर्म का जो प्रोपाउंड करते हैं, धर्म के विचार की शुरुआत करते हैं, वो है बृहस्पति, जिसको बाद में गवर्नेंस के सिस्टम से कनेक्ट करके कौटिल्य ने वार्ता कहा है, राइट? सो गवर्नेंस के सिस्टम में वार्ता के रूप में, वार्ता का मतलब जिसमें आप जो आपके अलग, जिसको मंडल सिद्धांत या सप्तांग सिद्धांत के रूप में कौटिल्य ने रखा है, बेसिक है आपको, आई एम होपिंग दैट ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। सो वो सप्तांग और इस सब चीजों में जितने अंग हैं राज्य के, वो सारे अंग कैसे सावयवी रूप से काम करेंगे, कैसे साइमल्टेनियसली, कैसे एक साथ काम कर पाएंगे, ऐसा मानते हुए उसके लिए आपको आवश्यक होगा वार्ता, राइट? सो ये बृहस्पति और शुक्र गवर्नेंस के ऊपर बेसिक बातचीत उनकी यहां तक रही है। इसके आधार पर ही अब जितने भी जो भी ज्ञान प्रोपाउंड होता रहा भारत में, वो इसके आधार पर ही रहा। तो जिस तरह से हम वेस्ट में कौटिल्य को मानते हैं कि कौटिल्य से इतर कुछ नहीं हो सकता, वैसे ही भारत में ये कहा जा सकता है कि बृहस्पति और शुक्र से ज्ञान की शुरुआत होती है और ज्ञान बृहस्पति और शुक्र से इतर कुछ नहीं हो सकता, राइट? बृहस्पति और शुक्र ने जितना बात किया, अब हमारे लिए दुर्भाग्य ये है कि हमने बृहस्पति और शुक्र का ओरिजिनल लिखा हुआ कुछ अपने पास नहीं है। शुक्र का जैसे अपने पास है तो 1913 में विनय कुमार सरकार ने टेक्स्ट एक बहुत बल्कि काम किया हुआ है, वो शुक्र नीति पर आधारित है, राइट? बृहस्पति का ऐसे ही जो है कुछ कुछ लाइब्रेरीज में कहीं कहीं चीजें मिलती हैं, और हमको जो मेजर इनकी लिखावट या इनका जो ज्ञान है वो मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? तो हमको स्मृतियों से मिलता है, कौटिल्य से मिलता है, धर्मशास्त्रों से मिलता है। तो ये रेफरेंसेस अलग अलग जगह पर मिलता है। अलग से शुक्र नीति या बृहस्पति का कुछ काम हमको मिल जाएगा तो ऐसा नहीं है। हमको इन जो अपने पुराने टेक्स्ट हैं उनमें ही मिलता है, उन रेफरेंसेस के आधार पर कुछ लोगों ने कंपाइल किया है, राइट? सो बृहस्पति और शुक्र का ये रहा। उसके बाद जो है कौटिल्य की कथा शुरू होती है। तो कौटिल्य ने बेसिकली क्या किया है? कौटिल्य एक ब्राह्मण थे और ये उस समय थे जिस समय अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था, राइट? तो अलेक्जेंडर से किस तरह सामना करना है, क्या करना है, उसके लिए बात करने के लिए उस समय नंद वंश का शासन होता था। तो उनसे मिलने के लिए कौटिल्य गए, लेकिन वहां ये भी बड़ी कॉमन सी कहानी है, सब जानते हैं कि कौटिल्य को बहुत सम्मान नहीं किया गया, बल्कि उनको बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया सभा से। तो कौटिल्य ने ठाना कि भाई ये तो साम्राज्य चलने लायक नहीं है, क्योंकि ये साम्राज्य यदि विद्वानों का सम्मान नहीं कर सकता और यदि इसको अपने ऊपर आने वाले थ्रेट का आभास नहीं हो पा रहा है, तो इस साम्राज्य के रहने का कोई अर्थ नहीं है। ये साम्राज्य का जो
किसी राजा का धर्म जो है, उस धर्म का आभास यदि इस राजा को नहीं है, तो ये राजा प्रजा के लिए हो, ये राजा वो लेजिटिमेसी या वो अधिकार खो चुका है। तो अभी समय है कि नया राजा आना चाहिए जो प्रजा को समझे और जो अपना धर्म राजधर्म समझे, राइट। तो फिर उसके बाद वो किस प्रकार से चंद्रगुप्त के साथ मिलकर के फिर आगे सब काम करते हैं और एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है। तो वो नया साम्राज्य क्या अर्थशास्त्र पर आधारित साम्राज्य था या नहीं था, ये एक विषय है शोध का। बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया है, लेकिन कोई बहुत कॉन्क्रीट आइडिया हमको नहीं है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये प्रैक्टिस करते करते, मतलब साम्राज्य कैसा हो, ये पालन करते करते कौटिल्य ने सीखा कि हमको क्या क्या चीजें नई पता चल रही हैं, और उस आधार पर उन्होंने जो विषय कंपाइल किया, जो टेक्स्ट कंपाइल किया, उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पहले कंपाइल किया और उसको अप्लाई करने के लिए ये राज्य जो बनाया है वो बना, राइट। तो वी डोंट नो फॉर सर्टेन, बट इट इज फॉर श्योर दैट अर्थशास्त्र has a very very detailed version of how to run a state, right, beginning from the tax collection, from what kind of ministers should you have, from the characteristics of the king, and to the extent of what all knowledges does the king should have, right. तो अब जैसे राजा के बारे में कौटिल्य ने लिखा है कि राजा को ऐसा बहुत एथिकल होगा तो काम नहीं चलेगा, राइट। राजा को रियलिस्टिक होना चाहिए और राजा को क्लेवर होना चाहिए, राजा को रणभूमि का ज्ञान तो होना ही चाहिए, राजा को ज्योग्राफी यानी भूगोल का ज्ञान भी होना चाहिए। यदि राजा को भूगोल का ज्ञान नहीं है तो वो किसी जगह पर युद्ध करने जाएगा, उसको वहां का मौसम नहीं पता होगा, वहां का टेरेन नहीं पता होगा, तो वो रणनीति बनाने में सफल नहीं हो पाएगा, अच्छी रणनीति नहीं बना पाएगा। और जो राजा अच्छी रणनीति, अच्छी युद्ध नीति नहीं बना सकता, उसके लिए सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है, राइट। वैसे ही राजा का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। राजा बीमार भी हो तो भी उसको प्रजा के सामने प्रत्येक दिवस, हर रोज आना चाहिए। अदरवाइज इट विल बी इजियर फॉर द पीपल हु आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट द किंग, इट विल बी इजियर फॉर देम टू वर्क ऑन अ कॉन्स्पिरेसी थियरी, राइट। सो इसलिए राजा को प्रत्येक दिन बाहर आना चाहिए। टैक्स कलेक्शन कैसा होना चाहिए, तो टैक्स कलेक्शन के मामले में जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो बहुत हद तक रिजिड है। इस मामले में मनुस्मृति में डिफरेंस है। अब जैसे हम जब कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं तो लगभग वैसी बातें मनुस्मृति में भी हुई हैं। मनुस्मृति में भी स्पाइस की बात है, गुप्तचर, मनुस्मृति में भी राजा की बात है, मनुस्मृति में भी राज्य कैसे संचालित करना है इसकी बात है। तो लगभग सिमिलर विषयों की बात वहां भी हो रही है और वहां भी बृहस्पति और शुक्र को रेफरेंस देकर बात हो रही है। लेकिन वहां मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये है कि मनुस्मृति समाज के बारे में या समाज को फोकस करके जो व्यवस्था बन रही है उसके बारे में ज्यादा बात कर रहा है। मतलब द सोसाइटी इटसेल्फ इज एबल टू गवर्न और एडमिनिस्टर, राइट। द रोल ऑफ किंग is not that rigid or not that direct, right? Whereas in the Kautilya's Arthashastra, the role of kings becomes more or utmost important, right? जो राजा का काम है, राजा का रोल जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है कौटिल्य के समय में। इसका एक और मतलब आप समझोगे कि कौटिल्य के समय तक आते आते राज्य का जो संरचना है या स्टेट जो है, जिसको उस समय एम्पायर के रूप में देख रहे थे, वो बहुत मजबूत हो चुका है। जबकि मनुस्मृति जो उसके पहले की संरचना है, उसके पहले का एक टेक्स्ट है, उस समय में राज्य इतना मजबूत नहीं हुआ है। समाज स्वयं मजबूत स्थिति में है और समाज स्वयं पर शासन करने की स्थिति में है। समाज के पास स्वयं के ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके माध्यम से समाज स्वयं शासन कर रहा है, राइट। लेकिन आज मनुस्मृति की आलोचना जब हम कर रहे हैं तो हमको ये फिर से उस टाइम और स्पेस के आधार पर देखना पड़ेगा। वो ये उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय समाज स्वयं को गवर्न कर रहा है, राइट। और मनुस्मृति की आलोचना में हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये जो समाज स्वयं को गवर्न कर रहा था उसकी वजह से बड़ी सारी समस्याएं थी। समाज जब स्वयं को गवर्न कर रहा है तो समाज में लगभग मात से न्याय जैसी स्थिति रह रही थी, जिसमें यदि हम महिलाओं के लिए अच्छी बातें मनुस्मृति में नहीं लिखी हुई हैं, राइट।
जिसमें अलग अलग जातियों या अलग अलग वर्णों के लिए अच्छी बातें नहीं लिखी हुई हैं, राइट, जिसमें सजा या जिसमें दंड का जो प्रावधान है मनुस्मृति में वो वर्ण के अनुसार अलग अलग है। तो ये क्यों है? क्योंकि वहां पर राज्य मजबूत नहीं था, वहां पर समाज स्वयं की व्यवस्था से चल रहा था, राइट। अब ये इसका मतलब ये कतई नहीं निकालना है कि समाज की व्यवस्था खराब होती है। समाज ऐसी स्थिति में कारणवश पहुंच गया होगा जहां व्यवस्थाएं खराब हुई होंगी, लेकिन इसीलिए राज्य की उत्पत्ति होती है कि मात्स्य न्याय की स्थिति से हम बचें कैसे। और जब राज्य की उत्पत्ति होती है तो राज्य ऐसी व्यवस्थाएं ले आता है जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बताई हैं, राइट, कि आपका जो प्रजा है, जो आपका सब्जेक्ट है, वो प्रजा आप इस आधार पर नहीं देखेंगे कि वो किस वर्ण का है। यदि किसी ने चोरी की है तो उसका एक दंड है, वो दंड सबके लिए वही होगा, राइट। तो ये समाज और राज्य के अंतर को समझने की आवश्यकता है जो हम उस समय देख रहे हैं, राइट। तो ये आइडिया था गवर्नेंस का जो हमने मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखा, राइट। लेकिन अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समय में जो स्टेट बना वो स्टेट सरवाइव कैसा किया? कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पहला ऐसा टेक्स्ट है जिसके आधार पर भारत में एक बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ, राइट। तो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ और उसके बाद क्या कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उस तरह के लेखन समाप्त हो गए? ये सवाल पूछना पड़ेगा हमको। तो चंद्रगुप्त के बाद उन्हीं के लीनियज में अशोक का आगमन हो रहा है, राइट। अब अशोक के बारे में जो हम जानते हैं वो क्या है कि अशोक वाज समवन हु अडॉप्टेड बुद्धिज्म आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंग, राइट। बट आई मीन बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने ये माना है, और अशोक के जो अपने स्क्रिप्चर्स हैं, जो उनके शिलालेख वगैरह मिलते हैं, उससे ये पता चलता है कि अशोक ने बुद्धिज्म अडॉप्ट तो पहले ही कर लिया था, कलिंग के युद्ध के पहले ही अडॉप्ट कर लिया था। अशोक ने बुद्धिज्म अडॉप्ट कब किया इसका जानकारी हमको बहुत जगह पर नहीं मिलता है, लेकिन जहां मिलता है वहां यही मिलता है कि वो पहले ही बुद्धिज्म अडॉप्ट कर रखा है, राइट। अब बुद्धिज्म अडॉप्ट कर रखा है तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि कलिंग युद्ध के बाद बुद्धिज्म अडॉप्ट किया और उसके बाद पीस लवर हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। इसीलिए हमको ये भी बहुत जगह पर मिलता है कि अशोक इवन आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंग डिड अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ बारबेरिक इन्वेजन्स। कलिंग युद्ध के बाद भी बहुत सारे युद्धों में अशोक इन्वॉल्व रहा, राइट। और अशोक का जो शासनकाल था, अशोक के शासनकाल के दौरान ही हमको गुप्त साम्राज्य के पतन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, राइट। अशोक गुप्त साम्राज्य का आखिरी महान शासक साबित हुआ, राइट। मैं ये क्यों मेंशन कर रहा हूं यहां पर? क्योंकि अशोक की नीतियों को अगर आप देखेंगे तो उसमें दो तीन चीजें दिखाई देती हैं। एक तो ये कि अशोक वॉज वेरी रिजिड अबाउट द धर्म, कि उसने धर्म के लिए मंत्री बनाए। उनका नाम क्या धर्म अमात्य, धर्म महामात्य, ऐसा कुछ नाम था। और उनका काम ये था कि वो लोगों के घरों के भीतर जाकर देखेंगे कि लोग अपने घरों में क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो दिस वाज अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ सर्वेलेंस दैट दे हैड, राइट। और ये गवर्नेंस का जो सिस्टम अशोक के समय में डेवलप हुआ, जो चंद्रगुप्त के समय में डेवलप हुआ, वो अशोक के समय पर जाते जाते वापस कैसे उतना रिजिड हो जा रहा है। वो इतना रिजिड हुआ कि बाद में फिर ये एम्पायर एक तरीके से समाप्त ही हुआ है, राइट। और उस एम्पायर के समाप्त होने के बाद लगभग 600 वर्ष कोई उतना बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं हुआ। फिर उसके बाद सॉरी ये मौर्य एम्पायर था, मैं गुप्त कह रहा था। उसके बाद फिर गुप्त आते हैं, तो गुप्त साम्राज्य उसके बाद शुरू होता है, और वो गुप्त साम्राज्य 600 वर्षों के बाद शुरू होता है। गुप्त साम्राज्य में फिर से हमको एक ऐसा विचारक दिखाई देता है जिसका नाम था कामंदक। तो कामंदक ने एक नीतिसार नाम का टेक्स्ट लिखा, और कामंदक, अब आप देखेंगे इंटरेस्टिंग ये है कि कामंदक ने बृहस्पति और शुक्र के अलावा कौटिल्य को रेफरेंस के रूप में लेना शुरू किया। और नीतिसार जो टेक्स्ट है उसका वैसे ही शुरुआत है, सैल्यूटेशंस टू बृहस्पति, शुक्र एंड कौटिल्य।
तो इस प्रकार से शुरुआत करते हुए कामंदक की बात शुरू होती है, और कामंदक ने लगभग वैसा ही स्टेट बनाया है, कामंदक ने भी, जैसा कौटिल्य ने बनाया। और ये एविडेंस इसलिए है क्योंकि जो आप गुप्त साम्राज्य देखेंगे तो गुप्त साम्राज्य साउथ में एक्सपेंशन कर रहा है, और जो स्क्रिप्चर्स बना रहे हैं वो लगभग वैसे ही स्क्रिप्चर्स हैं जैसे अशोक के पिलर्स में दिखाई देता है। फिर आप गुप्तचर कैसे रखेंगे, और आप अमात्य, महामात्य, मंडल सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, लगभग ऑलमोस्ट वैसा ही जैसा कौटिल्य के समय में दिखाई देता है। तो वो चीज यहाँ फिर से दिखाई देती है, जस्ट दैट दे इनकॉर्पोरेटेड अ फ्यू चेंजेस इन द लाइन ऑफ धर्म, राइट। धर्म के आधार पर हम रिजिड नहीं हो, ये मेंशन किया कौटिल्य, इसमें कामंदक ने अपने नीतिसार में। पॉलिसीज पर फोकस करना कि हमारी पॉलिसी कैसी बने, और दूसरा फोकस ये था कि जो प्रजा है वो साम्राज्य का हिस्सा कैसे बना रहे। मतलब प्रजा को ये समझ में आए कि जो साम्राज्य चल रहा है हम भी उसका हिस्सा हैं और हमारा खुद का भी स्टेक है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति हमला करता है तो इट इज नॉट ओनली एन अटैक ऑन द किंग, बट इट इज ऑल्सो एन अटैक ऑन द एंटायर स्टेट ऑफ विच वी ऑल्सो आर पार्ट, राइट। तो इसलिए वो कामंदक के नीतिसार में हमको ऐसी चीजें दिखाई देती हैं। इसके लिए किंग को क्या प्रयास करने चाहिए, तो किंग को टैक्स बहुत ज्यादा नहीं करने चाहिए, लोगों को ऐसी सभाएं बनानी चाहिए जिसमें लोग हिस्सा ले सकें, लोग हिस्सेदार हो सकें। तो बेसिकली जिसको आज आप डेमोक्रेसी कहते हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, उसके कुछ कुछ बड़े फीचर्स दिखाई देने शुरू होते हैं कि लोग कैसे गवर्नेंस के सिस्टम का हिस्सा बनेंगे इन द टाइम्स ऑफ कामंदक एंड इन द टाइम्स ऑफ गुप्ता एम्पायर, राइट। फिर वो कामंदक के बाद कामंदक का साम्राज्य भी लगभग वैसा ही समाप्त हो जाता है गुप्तों के समाप्त होने के बाद, और उसके बाद हमारे यहाँ जो बाहरी आक्रमणकारी का, आक्रांताओं का आगमन शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ उस समय फिर बहुत लंबे समय तक कोई इस तरह का टेक्स्ट दिखाई दे रहा हो ऐसा नहीं है। सो अ वेरी सैड स्टेट ऑफ लाइफ कि हमने आक्रांताओं के आने के बाद फिर समस्याएं शुरू हो जाती हैं। फिर एक नया टेक्स्ट हमको कब दिखाई देता है, जब आपने नाम सुना होगा सयाजी राव गायकवाड़ का। तो सयाजी राव गायकवाड़ के को शिक्षा दे रहे हैं उनके जो पिता हैं राजा माधव राव। तो राजा माधव राव ने सयाजी राव गायकवाड़ को लगभग 80 पेजेस का एक टेक्स्ट बनाकर, मतलब उन्होंने तो लेक्चर दिए होंगे, वो कंपाइल किया हुआ है टेक्स्ट्स में। वो लेक्चर्स जो हैं राजा माधव राव के, वो लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन लेक्चर्स में हम दोबारा देखते हैं कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, राइट। उन लेक्चर्स में एक ऐसी चीज दिखाई देती है जिसमें वो कहते हैं कि आप अंग्रेज उस समय ऑफ कोर्स आ चुके हैं, तो अंग्रेजों से लड़ भिड़ करके काम करेंगे तो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी से युद्ध करें। हमको अपने आप को बनाकर रखना है, बचाकर रखना है। और हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारी प्रजा है वो प्रॉस्परस हो। तो वो कैसे होगी, वो तब होगी जब आपका ये चर्निंग ऑफ नॉलेज चलता रहेगा, राइट। सो चर्निंग ऑफ नॉलेज कैसे चलता रहेगा, इट इज ऑलरेडी 8 o'clock आई गेस, 8 बज गए हैं। अपने पास टाइम कितना है, कैन समवन प्लीज टेल दिस टू मी। We have already crossed an hour, I guess. Sir, no issues of time. If you are free, we can continue. Okay, ठीक है। फिर भी मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा अभी तो, then I'll start concluding. So राजा माधव राव जो हैं, राजा माधव राव ने कैसे प्रजा के ऊपर फोकस करना है और ये चर्निंग ऑफ नॉलेज कैसे जारी रहे, इसके ऊपर बहुत सारा काम किया। 2 उदाहरण इसके मिलते हैं। तो सयाजी राव गायकवाड़ was the one who gave फंडिंग्स टू महर्षि अरविंद। सो अरविंद घोष, महर्षि अरविंद घोष बने और इतना सारा जो ज्ञान प्रोपाउंड कर सके, उसके पीछे का जो बैकअप है वो सयाजी राव गायकवाड़ से मिलता है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन वाज भीमराव रामजी अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर। सो डॉक्टर अम्बेडकर को जाकर शिक्षा ग्रहण करनी है, पढ़ना चाहिए, उसके लिए जो फेलोशिप दी वो सयाजी राव गायकवाड़ ने दी, राइट। अब महर्षि अरविंद ये जो फेलोशिप या रिसोर्सेज जो मिले उसके आधार पर क्या कर पाए, तो वो यही है जिसकी बात हम अभी तक कर रहे हैं बृहस्पति से शुरू करके। महर्षि अरविंद ने वो किया कि ही स्टडीड अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल, व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड। सो महर्षि अरविंद ने उस समय एक टेक्स्ट लिखा, दैट टेक्स्ट वाज कॉल्ड द भवानी मंदिर। भवानी मंदिर में क्या था, छोटा सा टेक्स्ट है, आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा और पढ़ना चाहिए सभी को। ये उस समय की बात है जब हम अंग्रेजों से पीड़ित थे और अंग्रेज भारत को बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे थे।
अरविंद ने ये कहा कि हमारे यहाँ एक चर्निंग ऑफ नॉलेज जो चल रही थी, जिसके कारण भारत का नाम भारत था, जिसके कारण हम कहते थे कि ज्ञान में लगा हुआ देश है, वो चर्निंग बंद हो गई है। और उसके बंद होने की वजह से हम नए सिस्टम्स गवर्नेंस के डेवलप नहीं कर पाए हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ है, हम सिस्टम्स डेवलप नहीं कर पाए, हमारी प्रजा जो है या हमारे लोग जो है, जो हमारा समाज है, वो मृतप्राय हो गया है। द समाज डजंट कनेक्ट इटसेल्फ विथ द आइडिया ऑफ भारत, राइट। और वो मृतप्राय होने की वजह से हमको रीअवेकन करने की जरूरत है। तो रीअवेकन कैसे करेंगे? रीअवेकन करने के लिए जो चित्त है, जिसको चिति कहा गया, राइट, उसको दोबारा से जीवित करना पड़ेगा। वो चिति क्या है? वो आपका खुद का स्व है, राइट। आपका स्वराज कैसे होगा? वो जब तक अवेकन नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए उन्होंने एक भवानी मंदिर, एक मंदिर की संकल्पना की, एक ऐसा मंदिर जो भारत के लोगों को एक देवी से जोड़ेगा। वो देवी जिसको देवी भवानी कहा गया। बाद में उसी भवानी मंदिर के आइडिया के आधार पर भारत माता का पिक्चराइजेशन हुआ, जिसको भारत माता मंदिर उसके आधार पर फिर बनाया गया, राइट। और उस भारत माता के साथ सभी जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं वो कनेक्ट कर सकें, वो भारत माता के साथ भारत के सब लोग कनेक्ट कर सकें। और वो हुआ भी बाद में, भारत माता का पिक्चराइजेशन हुआ और सब लोग उसके साथ कनेक्ट कर पाए। इसलिए भारत में एक बड़ा सक्सेसफुल फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम मूवमेंट चल पाया, जिसके आधार पर हम सबने या हमारे फोर फादर्स ने उसमें भाग लिया होगा, राइट। तो वो एक चर्निंग थी जिसको ऑन करने का प्रयास उस दौरान हुआ। और ये कैसे हमारे लीनिएज में हुआ है लगातार, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव दैट आई स्टार्टेड माय लेक्चर विद। सो आई विल स्टॉप हियर एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज गो अहेड, आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड, प्लीज। हाँ अमित, यू आर नॉट ऑडिबल। अमित जी पूछिए। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो जब हम पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, जब आपने अशोक की बात करी, तो या रोमिला थापड़ हो गई या फिर जो भी मार्क्सिस्ट एक आइडिया, मतलब जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस है वो ये चीज पोर्ट्रे करते हैं कि जो अशोक था वो कलिंग के बाद उसने अपना रिलीजन चेंज किया था। एंड जब हम ये काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं कि अशोक ने कलिंग के पहले इस चीज को किया था या बुद्धिज्म को अडॉप्ट उसने पहले ही कर लिया था, एंड वो हिंसा वाली चीज उसकी कंटिन्यूटी में चलती है, तो इस चीज को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? लाइक उसमें हमारे पास कोई कंक्रीट प्रूफ या कोई सोर्स जिसको हम पढ़ सकते या कोट कर सकते? देखो, अशोक के जो स्क्रिप्चर्स हैं, उन स्क्रिप्चर्स में अशोक अपने आप को किस प्रकार से प्रेजेंट कर रहा है, एक तो ये। और दूसरा ये मतलब ये ऐसा क्या है कि हमारे पास बहुत एविडेंस अगर नहीं भी है, तो क्या इस बात का कोई एविडेंस है कि कलिंग युद्ध के बाद वो बुद्धिज्म अपना रहा है? इस बात का भी कोई एविडेंस नहीं है ना। जैसे हम ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति, अब मनुस्मृति के कई सारे वर्जन्स हैं, राइट। तो हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि बहुत सारे वर्जन्स हैं और अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, राइट। और ये लेफ्ट के स्कॉलर्स भी एक्सेप्ट करते हैं, राइट। वैसे ही स्कॉलर चाहे किसी भी अलाइनमेंट का हो, किसी भी तरफ अलाइंड हो, वो ओपन टू एक्सेप्टेंस होना चाहिए। हम चलो ठीक है, अगर हम इस बात को मान लेते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद ही एक्सेप्ट किया है, तो कलिंग युद्ध के बाद जब भी अशोक ने अगर बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है, इस बात का क्या कोई एविडेंस है अपने पास? नहीं है, नहीं, राइट। सो हम क्यों इस अप्रोच को नकार, एक हाइपोथेसिस हम पूरा छोड़ क्यों रहे हैं? हम केवल इसी हाइपोथेसिस को सही क्यों मान रहे हैं कि उसने युद्ध के बाद ही अपनाया है, राइट। दूसरा, ये जो अमात्य वाली बात मैंने आपको बताई कि अमात्य किस लेवल तक का सर्वेलेंस करेंगे, इसके तो एविडेंसेस हैं। स्क्रिप्चर्स कौन से स्क्रिप्चर में है ये मैं अभी ध्यान नहीं आ रहा, तो मैं आपको ये थोड़ा सा रिसर्च करके मैं भेजूंगा कि कौन से स्क्रिप्चर में है जिसमें अशोक ने ये लिखा हुआ है कि उसके अमात्य लोगों के घरों के भीतर भी जाएंगे। और ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि सभी लोग जो है धर्म का पालन करें। हाँ, यहाँ ये जरूर मानना चाहिए कि अशोक ने सबको बुद्धिज्म ही मानना है, ये लिखा नहीं है कहीं। यस, अशोक ने धर्म का पालन करना ऐसा लिखा है, राइट। लेकिन वो एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या हो रहा होगा, वी डोंट नो। प्लस इवन इफ इट वाज राइट
to the words with the terminologies कि सबको अपना धर्म पालन करना चाहिए, तो भी अशोक का सर्वेलेंस कितना है लोगों के घरों में? आज का राज्य भी नहीं कर सकता इतना सर्वेलेंस, जिस लेवल का सर्वेलेंस अशोक कर रहे हैं, राइट? सो हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस। और जैसे हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि कोई भी इतिहासकार ये क्लेम तो करता है कि वो बायस नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जैसे ही सोचने लायक होता है वैसे ही बायसनेस उसके अंदर आती ही आती है। तो बीइंग फ्री फ्रॉम द बायसेस हैज बीन द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एनी हिस्टोरियन, बी इट एनी राइट विंग और लेफ्ट विंग हिस्टोरियन, कोई भी विंग हो, वो चैलेंज तो आता ही है इस बात का कि भाई किसको सपोर्ट करना है, अपोज करना है। तो न्यूट्रल हिस्ट्री जैसी कोई बात होती हो तो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, अभी तक तो नहीं मिला है। जहां भी ओपिनियंस आएंगे वहां बायसेस आते ही आते हैं, राइट? प्रॉब्लम यहाँ ये है कि द हिस्टोरियन दैट यू नेम्ड, रोमिला थापर, इफ शी क्लेम्स अबाउट एनीथिंग अबाउट अशोक की जो स्क्रिप्चर्स मिले हैं या अशोक के समय के जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, वो जिस भाषा में है उस भाषा का ज्ञान नहीं है उनको। And she has accepted this on various portals, various platforms. Yes. So she relies herself on the secondary sources, right? Secondary sources के आधार पर rely करके ही अगर काम करना है तो secondary sources तो बहुत सारे हैं, है ना? Secondary sources तो बहुत सारे biases के साथ लिखे हुए हैं। Primary sources, which are the scriptures, जो अशोक के स्तंभ हैं, उन स्तंभों के आधार पर हमको क्या ज्ञान मिल रहा है वो समझना पड़ेगा। अगर ये जानना चाहते हैं तो ये संजीव सान्याल की किताब है, विच इज अपॉन द एम्पायर्स ऑफ द कंट्री। किताब का नाम सम रिवर्स वर्क वगैरह करके है। संजीव सान्याल की किताब सर्च करेंगे आ जाएगा। तो उस किताब में उन्होंने स्क्रिप्चर्स के आधार पर अशोक का बहुत अच्छा काम जो है उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, उसमें उन्होंने लिखा भी है। अब संजीव सान्याल को बहुत सारे लोग हिस्टोरियन नहीं मानते हैं, लेकिन किताब संजीव सान्याल ने जो लिखा है, संजीव सान्याल himself doesn't claim to be a historian, right? But whatever he is writing is based on the primary sources. So if something is based on primary sources, you will have to believe it, right? अगली बार से अगर कहीं कोट करना हो तो संजीव सान्याल को कोट कर सकते हैं इस बारे में कि अशोक को, संजीव सान्याल तो ये बोल रहे हैं कि कलिंग से पहले ही बुद्धिस्ट हो गए हैं, राइट? तो और उसके अलावा ये जो बिंबिसार वगैरह हैं ये लोग बुद्धिस्ट रहे हैं। तो जो मौर्य साम्राज्य है उसमें बुद्धिज्म का इतिहास तो रहा है ना राजाओं के बीच में। तो एक लीनिएज मिल रहा है हमको कि एक राजा बुद्धिस्ट है, उसका बेटा भी बुद्धिस्ट है, उसका बेटा भी बुद्धिस्ट है। तो अशोक अचानक से नॉन बुद्धिस्ट कब हो गए बीच में, और फिर उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म ज्वाइन किया, ऐसा कैसे हो सकता है? या फिर बीच में कोई और धर्म ज्वाइन कर लिया था, उसको छोड़ के बुद्धिज्म ज्वाइन किया। तो बाई नेचुरली अगर प्रोग्रेशन देखोगे तो बुद्धिस्ट ही रहे हैं, है ना? नेचुरल प्रोग्रेशन बुद्धिज्म का है। तो इसमें अलग से एविडेंस मिलेगा बुद्धिज्म ज्वाइन करने का, ऐसा नहीं हुआ है। ये तब खोजना पड़ेगा एविडेंस जब कोई कह रहा है कि कलिंग युद्ध के बाद बुद्धिज्म हो गया, राइट? अगर एक पिता का पुत्र उसी धर्म में है जिस धर्म में वो था उसका पिता, तो उसके लिए एविडेंस नहीं मिलेगा ना। अगर हमारे पिता हिंदू हैं और हम भी हिंदू हो गए तो हमने हिंदुइज्म कब ज्वाइन किया ये कहाँ मिलेगा? yes. तो वैसा ही है, अब अशोक ने कब ज्वाइन कर लिया ये नहीं पता हमको। तो नेचुरली ही इज अ बुद्धिस्ट। हमको ये बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो प्रचलित बना दिया गया है विमर्श वो ये है कि अशोक ने कलिंग के बाद ज्वाइन किया, which is wrong. Naturally he was a Buddhist, right? Yes, next question please. सर इसी पे एक मेरा ऐड ऑन है, अगर किसी और का क्वेश्चन नहीं। कहिए भैया कहिए। सर एड ऑन ये है कि आपने भी बोला कि मनुस्मृति के बहुत सारे वर्जन है। अभी सर जब भी मनुस्मृति को कोट किया जाता है तो उसको ओरिजिनल टेक्स्ट को छोड़ करके जो विलियम जोन्स ने एडिट किया था सर 1784 या उस टाइम पे, तो उसको कोट किया जाता है और उसके बाद सर मनुस्मृति पे बहुत सारा आउटरीच होता है। तो क्या कोई सोर्स, उसके अलावा भी कोई सोर्स या ट्रांसलेशन अवेलेबल है मनुस्मृति का जो एटलीस्ट दाक्षी वाले तो पढ़ सकते हैं उस चीज को? नहीं देखो, एक तो जो विलियम जोन्स वाला वर्जन है
वो विलियम जोन्स वाला वर्जन वो वर्जन है जो सबसे पहले ढूंढा गया था। वो वर्जन कौन सा था? तो वो बंगाल रीजन में पाया गया एक वर्जन था। और उस वो क्यों ढूंढा गया था? क्योंकि अगेन इफ यू गो बैक इन हिस्ट्री ऑफ द कॉलोनियलिज्म की हिस्ट्री में ये अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कॉलोनियलिज्म शुरू कैसे हुआ, भारत में ही नहीं किसी भी कॉलोनी में शुरू कैसे हुआ है। तो देयर वाज अ ट्रीटी कॉल्ड वेस्टफेलिया 1648, राइट? और उसके पहले वो ट्रीटी क्यों हो रही है? क्योंकि देयर वाज अ वॉर व्हिच वाज गोइंग ऑन फॉर 30 इयर्स, नोन एज 30 इयर्स वॉर। वो वॉर क्यों हो रही थी? क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अलग अलग वर्जन्स, सम ऑफ देम बिलीव्ड दैट द ओल्ड टेस्टामेंट जो चल रहा था, ओल्ड टेस्टामेंट को ही मानना है, दैट इज द बेस्ट वर्जन, राइट? उसके बाद सम ऑफ देम बिलीव दैट नहीं, इसमें ये चेंजेस होने चाहिए। तो अलग अलग वर्जन्स बेसिकली ऑफ क्रिश्चियनिटी ट्रेडिशंस। जैसे भारत में सनातन की अलग अलग परंपराएं एक साथ फ्लरिश कर रही थी, राइट? टसल्स भी हुए होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन टसल्स के बाद भी फ्लरिश कर रही थी। बट ऐसा हमारे यहाँ कभी नहीं देखा गया कि अलग अलग ट्रेडिशंस में वर्षों तक युद्ध चलता रहा हो और वो युद्ध किसी परिणति तक नहीं पहुंच रहा हो। लेकिन पश्चिम में ऐसा ही हो रहा था। क्रिश्चियनिटी के अलग अलग वर्जन्स का आपस में युद्ध चल रहा है, 30 वर्षों तक चल रहा है। जब किसी परिणति तक नहीं पहुंचा तो एक संधि हुई जिसको कहते हैं वेस्टफेलिया की संधि। वेस्टफेलिया जगह का नाम है, जिसमें यह बताया गया कि 4 चीजें हैं, एक टेरिटरी, दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा सॉवरिनिटी और चौथा गवर्नमेंट, राइट? ये 4 चीजें अगर कहीं पर होती हैं तो आप मानो कि वहां पर स्टेट है, वो स्टेट बोलोगे उसको। और जब स्टेट एस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके बाद वहां स्टेट उस पर हमला नहीं होगा, राइट? तो ऐसे एक के बाद एक करते करते स्टेट बहुत सारे स्टेट एस्टेब्लिश हो गए और यूरोप में सैचुरेशन की स्थिति आ गई, राइट? लेकिन क्रिश्चियनिटी का उद्देश्य क्या? तो उद्देश्य क्रिश्चियनिटी और फॉर दैट मैटर एनी अब्राहमिक रिलीजन, उद्देश्य ये है एक्सपेंशन, टेरिटरी का भी एक्सपेंशन और संख्या का भी, राइट? तो वो कैसे होगा? उसके लिए आपको यूरोप की टेरिटरी से बाहर जाना पड़ेगा, है ना? तो बाहर जाकर के ढूंढना शुरू किया। इसलिए अब ये टेरिटरी और लोगों का एक्सपेंशन, उसके पीछे ट्रेड का भी एक कारण था। ट्रेड भी क्यों आया? क्योंकि जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय एक ऐसा समय आया जब क्रिश्चियनिटी के को मानने वाले साम्राज्यों में आपस में एक बहस शुरू हो गई कि जो पोप है वो सत्ता को संचालित कर रहा है, चर्च सत्ता को संचालित कर रहा है। तो चर्च और राजा, इन दोनों के बीच में संघर्ष शुरू होता है। चर्च जो है वो किन चीजों का प्रतिनिधित्व करता है? तो फिलॉसफी का, धर्म का, इमोशंस का, वैल्यूज का, एथिक्स का, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा, सब्जेक्टिव थिंग्स। बट द किंग used to be representing the idea of objectivity, science, logic, right? इस तरह की चीजें। जब किंग की विजय हो रही है, जिसमें कह रहे हैं वो स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, जिसको रेनेसां और एनलाइटनमेंट कहते हैं, तो उसमें फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है क्योंकि साइंस की विजय हुई है, मशीन्स आ रही हैं, ट्रेड हो रहा है। तो ये सब इस वजह से हो रहा है और वो ट्रेड और इंडस्ट्री और मशीन्स को लेकर कॉलोनीज तक पहुंचते हैं। लेकिन उनका जो पुराना उद्देश्य है संख्या और टेरिटरी का एक्सपेंशन, उसके लिए उनको क्या चाहिए? वहां जिस जगह पर जा रहे हैं वहां रिलीजन कौन सा है, ढूंढना। वहां सिस्टम क्या है, ये ढूंढना। तो ये ढूंढते ढूंढते उन्होंने क्या पाया? मनुस्मृति का एक वर्जन, अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर थिंग्स। सो मनुस्मृति का वो जो वर्जन मिला, उसमें उनको एक तो दिस वर्जन वाज इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, सो ही हैड टू लर्न वैदिक संस्कृत, राइट? और द पर्सन, दिस विलियम जोन्स, उसने पहले अलग अलग चीजें, अलग अलग भाषाएं सीखी, फिर उसको उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और उसका जो ट्रांसलेशन, सोचो उसने 3 महीने में सीखा था उसने, बनारस में जाकर 3 महीने में कितनी संस्कृत सीख ली कि मनुस्मृति को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। और वो इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन भारत में लोग पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ते हैं। उस ट्रांसलेशन को पढ़ के फिर उसको क्लास में प्रोफेसर कोट भी करते हैं, वो कोट करते ही करते हैं। प्रोफेसर तो छोड़ो, उसकी वो जो आजकल मनुस्मृति की जो प्रतियां जलाई जाती हैं, वो प्रतियां वही हैं जो उसने विलियम जोन्स ने लिख दिया और उसके इंटरप्रिटेशन के आधार पर दूसरे लोगों ने लिखा, राइट? सो मेनी थिंग्स आर लॉस्ट इन इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत सब अच्छी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन अभी हमने आधे घंटे पहले जब बात कर रहे थे तो मैंने बताया कि समाज केंद्रित व्यवस्था और राज्य केंद्रित व्यवस्था, ये उस समय की बात है जब राज्य की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी।
जब समाज स्वयं को गवर्न कर रहा था उसमें समस्या थी, और वो समस्या से बचने के लिए ही राज्य की उत्पत्ति हुई, राइट। सो एनीवेज, ये जो वर्जन है मनुस्मृति का, उसके वर्जन की जगह पर बहुत सारे और वर्जन है। जैसे साउथ इंडिया का अलग वर्जन है, कर्नाटक में एक अलग वर्जन है, तमिल में एक अलग वर्जन है, मलयालम में अलग वर्जन है। सो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रीजन्स के आधार पर अलग अलग वर्जन्स हैं। और सिंस समाज के आधार पर आधारित व्यवस्था के आधार पर ये लिखी हुई पुस्तक है, इसलिए अलग अलग समाजों में दंड का प्रावधान अलग अलग है। पूरे भारत में एक ही जैसा दंड का प्रावधान हो ऐसा नहीं है, राइट। तो इसलिए अलग अलग प्रावधान है। अब जैसे मनुस्मृति में किसको क्या भोजन करना है ये भी लिखा हुआ है, राइट। तो जो बंगाल वाला वर्जन है, उस वर्जन में सी फूड के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन जो प्लेन्स में वहां है ही नहीं, तो कैसे लिखोगे, राइट। सो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की चीजें लिखी हुई हैं। ये हमको समझना पड़ेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है। वो विलियम जोन्स वाला वर्जन पढ़ेंगे, और विलियम जोन्स का वर्जन भी नहीं है एक्चुअली। वो जो हम पढ़ रहे हैं वो विलियम जोन्स को पढ़ के दूसरे लोगों ने लिखा है, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन है। सो एनीवेज, दिस वाज अबाउट मनुस्मृति। एनी मोर क्वेश्चंस? सर, जब हम बात करते हैं गवर्नेंस के ऊपर, तो फिर हम ये देखते हैं कि गवर्नेंस के बारे में हमने अभी जितना भी सीखा या पढ़ा, वो टाइम टू टाइम बदलता रहता है। लाइक रामायण काल की जो गवर्नेंस थी उसमें थोड़ा अलग था, फिर महाभारत में अलग हुआ, और अभी अगर हम आधुनिक इतिहास की बात करते हैं, फिर कौटिल्य और की अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में काफी सारी समानताओं के साथ साथ असमानताएं भी हैं। तो आज के समय में और उनके जो भी गवर्नेंस के तरीके रहे हैं पुराने, तो उनमें क्या रिलेशन है और आज के समय में कैसा होना चाहिए, मैं उस बारे में विचार जानना चाहूंगा। तो देखो, रिलेशंस तो वैसे ही हैं, आपने खुद ही बता दिया सवाल में। कुछ चीजें सिमिलैरिटीज हैं, कुछ डिससिमिलैरिटीज हैं, राइट। रिलेशंस ये हैं कि जो विचारक ये विचार रख रहे हैं, वो सभी विचारक एक दूसरे से रेफरेंसेस के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जैसे अब जो मैं शुरुआत में कह रहा था मेथड्स, तो मेथड्स हमारे यहाँ रिसर्च का क्या रहा है। आप अभी जो कोई भी अगर रिसर्च पेपर लिखते हैं या रिसर्च करते हैं, तो उसमें रेफरेंसेस लिखने होते हैं, राइट। इफ यू आर राइटिंग समथिंग विदाउट रेफरेंसेस, तो वो ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा। माना जाएगा कि वो रिसर्च नहीं है, आपने ऐसे हवा में कुछ भी लिख दिया है। तो क्योंकि भारत में जो ज्ञान मिलता है वो रेफरेंसेस के आधार पर मिलता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कुछ भी हवा में नहीं है, रेफरेंसेस के आधार पर लिखा गया जो भी लिखा गया। कौटिल्य कुछ लिख रहे हैं तो वो बृहस्पति के रेफरेंस से लिख रहे हैं, याज्ञवल्क्य के स्मृत के रेफरेंस से लिख रहे हैं, मनु के रेफरेंस से लिख रहे हैं, राइट। नीतिसार कामंदक लिख रहे हैं तो वो कौटिल्य के रेफरेंस से लिख रहे हैं। तो समय के आधार पर आज से 5000 साल पहले जो था वो आज भी जीवित कैसे बना हुआ है, वो इसी आधार पर बना हुआ है कि जो विचारकों ने लिखा वो एक दूसरे को जीवित रखते हुए लिखा, और कोई भी ये क्रेडिट का भूखा हुआ आदमी नहीं है। सब ये मान रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, जो है वो पहले से जो रहा हुआ ज्ञान है उसी को हमने अपने आज के आवश्यकता के अनुसार समायोजित किया है, राइट। तो भारत में जो है ना, अब वेस्ट में ये एक और कंट्रास्ट है ये कि वेस्ट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सब चीजें नहीं है। भारत में ऐसा नहीं है, नाम के भूखे नहीं है लोग। अब आज हम वेस्ट के प्रभाव में अगर हो गए हो तो अलग बात है, लेकिन हमारी परंपरा ऐसी नहीं रही है। इसीलिए हमारी परंपरा में अब किसने लिखा ये नहीं आता। वेद किसने लिखा किसी को नहीं पता, मनुस्मृति किसने लिखी नहीं पता हमें। लोग तो यहां तक कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो भी अब विष्णुगुप्त ने लिखा है, तो कौटिल्य नाम का हो सकता है कोई एक पद रहा होगा, हो सकता है कोई एक प्लेस या कोई एक चेयर रही होगी कौटिल्य नाम की, जिस पर विष्णुगुप्त एक समय बैठे, उनसे पहले कोई और बैठा होगा। और अर्थशास्त्र अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय में कंपाइल किया, अलग अलग कौटिल्यों ने अलग अलग समय में कंपाइल किया होगा, राइट। और जिसने भी कंपाइल किया वो हमेशा इस रेफरेंस के साथ कंपाइल कर रहा है कि हमसे पहले ये नॉलेज इन्होंने ऐसे किया है, राइट। सो बट देन द क्वेश्चन इज, ये तो रिलेशंस की बात हुई। आज के समय में क्या, आज के समय में वही समस्या है कि हम रिसर्च के उस मेथड पर जा नहीं रहे हैं। आज के समय में हमको ये समझना पड़ेगा कि जो रिसर्च भारत में, भारत जब हम कह रहे हैं भारत ज्ञान में लगा हुआ देश, तो वो एक समय में था, आज वो कॉन्शियसनेस खत्म हो गई है। द सोसाइटी हैज लॉस्ट इट्स चिति, जिसको महर्षि अरविंद ने कहा, द सोल इज डेड। हम अभी क्या है, दूसरे जो वेंटिलेटर पर किसी को रख देते हैं ना और बाहर से हवा देते हैं तो सांस लेता है, वैसी हालत है हमारी। हमको वेस्टर्न थॉट प्रोसेस का वेंटिलेशन मिल रहा है,
हम उसी से जिंदा हैं. We don't have anything of our own now. The time has come that we should start thinking from the Indian methods, incorporating the Indian methods. और भारत में क्या रहा है उसके आधार पर भारत को क्या आवश्यकता है ये बिल्ड करें, तब हम बना पाएंगे फिर. ठीक. और किसी कोई प्रश्न? जी आयशी जी पूछिए. Good evening, sir. Is my voice audible? You are audible. Yes, sir. Actually, first of all, today's session is really good. I learned a lot and really enjoyed it, sir. Thank you so much. Thank you. Sir, my question is this. Why does Kautilya start the Arthashastra by taking the name of Shukra and Brihaspati? I know they are the great teachers, but is there any specific reason or a deeper meaning behind choosing them? See, there were several reasons. One, इंडियन ट्रेडिशन में बृहस्पति और शुक्र को मानते हैं कि नॉलेज की शुरुआत यहीं से हो रही है, राइट. किसी भी तरह का नॉलेज वो बृहस्पति और शुक्र से ही शुरू होता है, राइट. प्लस जो इनकॉर्पोरेट किया है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में, उसमें बड़ी सारी चीजें हैं. एक तो ये कि राजा को कैसा होना चाहिए. अब बृहस्पति जो है वो धर्म नीति की बात पर फोकस कर रहे हैं और शुक्र दंड के ऊपर फोकस कर रहे हैं. कौटिल्य ने उन दोनों को लिया है. कौटिल्य ने कहा है कि राजा के पास दो चीजें हैं, राइट. एक तो राजदंड है और एक है धर्मदंड, राइट. तो राजा के जो दो हाथ है ना, उन दोनों में दो ऐसे स्टिक्स हैं. सो एक जो है, जो जिसको धर्म कहते हैं, वो ये है कि आप समाज में धर्म को स्थापित करें, उसके लिए आपके हाथ में एक दंड है. और दूसरा जो जिसको राजदंड धर्मदंड कहा गया, और जिसको एक दंड कहा गया जो एक जो दंड नीति के आधार पर आता है, वो किस लिए है. तो वो इसलिए है कि यदि धर्म को स्थापित करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, कोई अड़चन आ रही है, तो उसके लिए आप दंड नीति का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट. प्लस देयर इज वन मोर थिंग व्हिच इज ऑफ utmost importance. There is a धर्मदंड in the hand of the guru of the king, राइट. जो राज्याभिषेक करता है, राज्यारोहण कराता है राजा का. तो राजा का जब क्राउन उसको पहनाते हैं ना सिर पे, तो जो पुरोहित होता है राजा का, वो उसके क्राउन पर 3 बार टक 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 ऐसे मारेगा, which is symbolization of the fact that the king himself is also not above the dharma, right. तो राजा जो है उसका भी अपना धर्म है, और उसका धर्म यही है कि धर्म समाज में स्थापित हो, एंड राजा हिमसेल्फ इज नॉट अबव द आइडिया ऑफ धर्म, राइट. सो इसलिए वो ये जो चीजें हैं, ये जो बेसिक बातें, इसके आधार पर फिर कौटिल्य ने अपना दुनिया भर का जो ताना बाना बुना है वो बुना है. पर बेसिक आइडिया यही है, धर्म. वो आइडिया कहाँ से आता है, तो वो बृहस्पति और शुक्र से आता है. धर्म और दंड, ये दो बेसिक आइडियाज, और इसी आधार पर हम आज भी चल रहे हैं, धर्म और दंड के आधार पर. जिसको आप रूल ऑफ लॉ वगैरह वगैरह कहते हैं, वो आइडिया धर्म और दंड का आइडिया ही है, राइट. आई होप आई हैव मेड सेंस. Yes, sir. Thank you. और किसी कोई प्रश्न है? जी निष्ठा. Yeah, good evening, sir. First of all, really, I'll go with Aishi. Like, the session was really nice. And sir, like, I had a question कि जैसे when we look at कि नंद से धनानंद से चंद्रगुप्त मौर्य पर जाते हैं, right? So like, as because it is said कि चंद्रगुप्त मौर्य, I'm not sure about his origin, whether he was a शूद्र or a क्षत्रिय, but the point was कि गवर्नेंस की पावर की अगर हम अकॉर्डिंग देखते हैं, so नंद डायनेस्टी टू मौर्य डायनेस्टी बनती है, राइट. सो बेसिकली इस समय पर हमें ये देखने को मिलता है दैट कौटिल्य फोकसेस ऑन द पॉइंट कि किसी भी किंग में मतलब पोटेंशियल देखनी होती, राइट. बिकॉज ही डिड नॉट थिंक कि धनानंद वाज एज मच, यू नो, लाइक ही वाजंट हैविंग दैट मच कैलिबर जितना चंद्रगुप्त मौर्य के पास था, राइट. सो लेकिन जब हम आगे चल के कौटिल्य जी की वो पढ़ते हैं, लाइक अर्थशास्त्र, सो ही एम्फसाइजेस अ लॉट ऑन द प्रिंस की नॉलेज, राइट. कि प्रिंस को लाइक ही शुड बी, यू नो, दिस मच अकस्टम्ड विद दिस मच नॉलेज, ये सब मतलब एज यू हैव आल्सो टोल्ड अबाउट कि ज्योग्राफी, वॉरफेयर, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए. सो माय बेसिक क्वेश्चन वाज दिस कि मतलब जहाँ एक तरफ हम चंद्रगुप्त मौर्य का सक्सेशन देखते हैं बेस्ड ऑन कैलिबर टू द थ्रोन, सक्सेशन टू द थ्रोन बेस्ड ऑन कैलिबर, वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं दैट कौटिल्य फोकसेस अ लॉट ऑन प्रिंस नॉलेज. मतलब वी कैन, एंड देन उनकी
उनकी रूलिंग में भी अगर हम देखते हैं फ्रॉम मौर्य टू देन बिंदुसार देन आफ्टर दैट अशोक, सो दिस इज आल्सो डायनास्टिक सक्सेशन टू द थ्रोन. सो लाइक व्हाट एग्जैक्टली कौटिल्य प्रमोटेड? डिड ही प्रमोट caliber based succession to throne or he promoted dynastic succession to throne? सो कौटिल्य ने डायनास्टिक सक्सेशन को मना किया हो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है. ये पहली बात है. दूसरी बात है कि कौटिल्य ने राजा के गुणों के ऊपर बात की है. राजा के भीतर वो गुण होने चाहिए. वो यदि डायनास्टिक सक्सेशन से मिलते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, और डायनास्टिक सक्सेशन से मिल जाएंगे इसकी संभावना ज्यादा है. कारण क्या है कि एक राजा का पुत्र, एक राजा, अच्छा राजा अपने पुत्र को वो सारी विद्याएं, शिक्षाएं देने का प्रयास करेगा ताकि उसका पुत्र अच्छा राजा बन सके. अगर ये सब कुछ ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उसका पुत्र अच्छा राजा नहीं बन सकता, तो जो योग्य राजा है वो राजा बने. कौटिल्य का ऐसा मानना है. कौटिल्य ने राज्य समाप्त कैसे हो जाएंगे इसके ऊपर भी लिखा है. जैसे कौटिल्य ने एक आइडिया ऑफ विजिगिषु के ऊपर बात की है. राइट. विजिगिषु का मतलब होता है कि विजय की इच्छा रखने वाला राजा. राइट. और उसके बाद फिर विजिगिषु का जो मंडल बताया है कौटिल्य ने, उसमें बताया है कि एक विजिगिषु राजा है जो सेंटर में है, उसके सराउंडिंग जो स्टेट्स हैं वो अरि हैं उसके. अरि का मतलब शत्रु, और वो एक मंडल, एक सर्कल हो गया. फिर उस सर्कल के बाहर वाला जो सर्कल ऑफ स्टेट्स है वो उसके मित्रों का सर्कल है. तो ऐसे अरि, फिर मित्र, फिर अरि मित्र, फिर अरि मित्र, मित्र, ऐसे करके अलग अलग सर्कल, 7 सर्कल्स की बात की है कौटिल्य ने. वो सर्कल में राजा को विजिगिषु होना ही चाहिए. राइट. तो अगर कैलिबर नहीं है तो राजा विजिगिषु नहीं हो पाएगा, और अगर राजा विजिगिषु नहीं है तो जो उसका सर्कल है ना अरि का, वो उसके ऊपर कब्जा कर लेगा. राइट. सो द किंगडम टू सर्वाइव, इट इज इंपॉर्टेंट द किंग हैज कैलिबर. Whether the caliber comes from dynastic procession or whichever other manner doesn't matter for Kautilya. Right? कौटिल्य को ऐसा लगता, अब जैसे चंद्रगुप्त किसी डायनास्टिक सक्सेशन से तो नहीं आए, है ना, लेकिन चंद्रगुप्त का बेटा हो सकता है आए डायनास्टिक सक्सेशन से. पर चंद्रगुप्त भी सीख कर आए ना, चंद्रगुप्त को सिखाया कौटिल्य ने. अब कौटिल्य बहुत वर्षों तक थोड़ी जीवित रहेंगे कि 3 पीढ़ियों को सिखा रहे हैं. उसके लिए तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान बढ़ना चाहिए आगे, तभी हो पाएगा. राइट. एक के बाद अगला राजा जो है वो उससे बेहतर राजा हो, उसके लिए उन्होंने अर्थशास्त्र लिख रखी है. अब अर्थशास्त्र को मानते हुए आगे कैसे राजा बढ़ेंगे, कैसे राज्य आगे बढ़ेगा, समृद्धि कैसे आएगी, दैट्स अप टू द किंगडम. राइट. Okay, sir. Thank you. And sir, one more question I have. I have another question. Like, what do you think that there's a difference or similarities or differences between Kautilya's Arthashastra and Machiavelli's The Prince? Similarities. Realism is what people, usually connect with. But the thing is that Machiavelli wrote The Prince in order to please the king, right? There has been a debate about the idea of the prince being written. He wrote it for the prince, for the king, to please the king. क्यों? क्योंकि there was this family of the kings ये काम कर रहा था मैकियावेली. फिर मैकियावेली, वो एक किंगडम को, एक राजा को हटा दिया गया तो उसका जितना स्टाफ है वो भी हट गया. फिर जो नया राजा आया, उस राजा के साथ काम करने के लिए मैकियावेली wrote a piece, right, that how should a king be. People do say that the prince is actually a mirror to let people, common people, know that this is how a king actually thinks, right? I mean, क्या बताया उसमें, प्रिंस में क्या लिखा है उसने, मैकियावेली ने, कि जो राजा है उसको प्रजा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. राजा को ये चिंता करनी चाहिए कि उसका राज्य कैसे बचा रहेगा. क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसकी अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी प्रजा में से ही हो रही हो. तो राजा कैन नॉट हैव फेथ ऑन एनीवन, ट्रस्ट किसी के ऊपर नहीं कर सकता. राइट. फिर मैकियावेली ने यह भी लिखा है कि राजा कभी बीमार नहीं हो सकता, और अगर बीमार हो भी गया है तो लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि राजा बीमार है. इस तरह की चीजें कौटिल्य ने भी लिखी हैं. बट माइंड इट दैट कौटिल्य इज नॉट राइटिंग दिस पीस आइदर टू प्लीज द किंग और टू बिट्रे द किंग, whereas Machiavelli has written either to please the king or to betray the king, or both. Right. The second thing is that often we call Kautilya the Machiavelli of India.
which cannot be the right thing to do. Kautilya lived hundreds of years before Prince, the Machiavelli, right? So कौटिल्य ने जो लिखा है, ऐसा हो सकता है कि मैकियावेली ने कॉपी किया हो, बट ऐसा नहीं हो सकता कि मैकियावेली ने जो लिखा वो कौटिल्य ने कॉपी किया है, right? So Kautilya is more far-sighted. Prince is a book of around 100 pages, right? Kautilya's Arthashastra is a book of around 1000 pages. So it's much more elaborated than what Prince is, right? So I will say that there's no comparison at all, but a few things which Kautilya has discussed have also been discussed by Machiavelli. That's it. All right, thank you, sir. Welcome. जी अनीशा जी गई है, पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा प्रश्न दंड नीति को लेकर है कि हम जो अपने प्राचीन समय में दंड नीति देखते हैं जिसकी चर्चा कौटिल्य ने और बृहस्पति और शुक्राचार्य ने की है, और आज के समय की जो दंड नीति की जो व्यवस्था है उसमें कौन सा ज़्यादा बेटर है? क्योंकि हम देखते हैं उस टाइम का कुछ उदाहरण मिलता है, जैसे अगर कोई भी सीरियस क्राइम हो तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, बहुत ही स्ट्रिक्टली दंड दिया जाता है, लेकिन आज के समय में इसमें काफ़ी एविडेंस जुटाते हुए सालों लग जाते हैं। तो मतलब दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर है? ओके, सो दंड नीति मनुस्मृति में जिस दंड की बात की गई है वो बहुत अलग है, दंड नीति शुक्राचार्य की जो है वो बहुत अलग है। हाँ, और आज जो हम दंड की बात करते हैं, पनिशमेंट की बात करते हैं, वो जमीन आसमान का अंतर है उसमें। जिस समय की बात हम कर रहे हैं एंशिएंट टाइम्स में, उस टाइम में शुक्र के समय की दंड नीति फिलोसॉफिकल थी बहुत हद तक। मनुस्मृति के समय की दंड नीति ज्यादा फिजिकल पेन पर आधारित थी कि फिजिकली कितना आप टॉर्चर कर सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम मनुस्मृति के अंदर जो दंड की नीति है उसमें अलग अलग वर्णों के आधार पर अलग अलग दंड की बात की गई है। आज का जो पॉलिसी है, आज की जो पनिशमेंट की पॉलिसी है, उसमें जस्टिस से कनेक्टेड है और जस्टिस में रिफॉर्मेटिव जस्टिस की बात की जाती है, राइट? रिफॉर्मेटिव जस्टिस का मतलब क्या है? दंड का उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना, किसी को दर्द देना या किसी को खत्म कर देना, जीवन समाप्त कर देना, ऐसा नहीं है। दंड का उद्देश्य आज के समय में पूरी दुनिया में ये है कि यदि किसी ने कोई अपराध किया है, यदि कोई अपराधी है, तो उसको सुधार कैसे सकते हैं ये। इसीलिए मृत्युदंड रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में देते हैं आज की डेट में, और जेल्स जो हैं वो इस हद तक कि उसको बंदी सुधार गृह जैसा बोला जाने लगा है आजकल, राइट? इनफैक्ट अभी प्रिजन्स में ह्यूमन राइट्स कितने हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उसके आधार उस पर काफी बातचीत हो रही है, राइट? तो ये अभी हम क्या है, रिफॉर्मेटिव जस्टिस की तरफ बहुत बढ़ गए हैं। ह्यूमन राइट्स और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही हैं, विच इज नॉट अ बैड थिंग, बट वी हैव डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वेयर वी बिगैन। दंड नीति जैसा दंड अभी आज के समय में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आज यदि कोई अपराध कर रहा है तो अपराधी को सजा देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उस अपराधी को सुधार कैसे सकते हैं। उसके पीछे कारण यह है कि यदि किसी ने मानव जीवन पाया है तो उसका मानव जीवन ले लेने का अधिकार किसी को नहीं है। वो अच्छा मानव कैसे बने, ये जिम्मेदारी राज्य की है, तो इसलिए राज्य को सुधार करने का प्रयास करना है, और जब तक वो व्यक्ति समाज के लिए खतरा है तब तक उसको जेल में डाल देंगे। ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं। यस जी वेद जी कहिए। वेद वैभव। नमस्ते सर, एम आई ऑडिबल? यू आर ऑडिबल, यस सर। मेरा क्वेश्चन धर्म से रिलेटेड है कि मतलब हाउ क्रेडिबल इज धर्म एज अ गाइडिंग लाइट फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप? क्योंकि मतलब कौटिल्य अगर अर्थशास्त्र पढ़े तो उसमें बोला जाता है कि फॉर द एंड्स दैट इज योगक्षेमा एनी मीन्स पॉसिबल शुड बी अडहर्ड टू, ऐसे करके। सो व्हाट इज द चेक पॉइंट beyond which we can no longer give up ethics for the sake of carrying out dharma? In the sake of carrying out dharma. Okay. So in our case का मतलब भारतीय केस, धर्म has been the supreme thing, right? अभी आज के समय में क्या हो रहा था, जब मैं कॉलोनियलिज्म की बात कर रहा था, तो कॉलोनियलिज्म ने in order to expand their territory and number,
they came to the colonies, they came to the territories, and they called those territories colonies. And then the second step was that they made those colonies states, right? अब states का idea क्या था पीछे वेस्टफेलिया में? States का idea मतलब यहाँ पर एक तरह का Christian state establish हो चुका है. So they came to the colonies and made those colonies, converted those colonies into states, right? तो यहाँ ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन बना दिया सबको, ऐसा तो सबको तो नहीं बना पाए, कुछ को बनाया कुछ को नहीं बनाया, बट क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस तो बना दिए, राइट? अब वो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस बना दिए, समय के साथ जो हुआ वो हुआ. हमारा जिम्मेदारी क्या है यहाँ पर? अगर धर्म नहीं रहता है या अगर हम अपने इंस्टीट्यूशंस में धर्म को नहीं ला पाते, राइट? धर्म का मतलब केवल हिंदू धर्म नहीं, राइट? इनफैक्ट हिंदू धर्म जैसा कोई धर्म रहा होगा इसकी कोई एविडेंसेस नहीं है अपने पास. धर्म का मतलब दायित्व बोध, धर्म का मतलब हम क्या धारण करते हैं, धर्म का मतलब ये कि हम समझें हमारे एथिक्स और मोरालिटीज क्या हैं. हम एथिक्स और मोरालिटी वेस्ट से अडॉप्ट करने की बजाय हमारे समाज की, हमारे टाइम और स्पेस की जो एथिक्स और मोरालिटी है उसको अडॉप्ट करें, राइट? यदि कोई गवर्नेंस के सिस्टम्स का पार्ट बन चुका है तो उसके लिए राजधर्म, यदि कोई विद्यार्थी है तो विद्यार्थी धर्म, यदि कोई शिक्षक है तो शिक्षक धर्म. तो प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने धर्मों का पालन करें, ये इंश्योर करना राज्य का काम, राइट? ये जो फीलिंग है ना, everybody is following their own dharmas and the rajya takes this responsibility to ensure that the dharma prevails in the society is the supreme thing that has to be done. जिस दिन हम ऐसा कर लेंगे उस दिन राम राज्य होगा. जी दिशा जी. नमस्ते सर, एम आई ऑडिबल? यू आर ऑडिबल. नमस्ते सर. जब अमित भैया पूछ रहे थे रिगार्डिंग द अशोक वाला, आई लिसन टू दैट डिस्कशन. तो सर जब भी हम जैसे अशोक की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जब भी बुद्धिस्ट ग्रंथों को देखते हैं और अशोक के खुद के शिलालेखों को, तो कई चीज़ें कन्फ्लिक्ट कर जाती हैं. जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, जैसे कि बुद्धिस्ट ग्रंथों में लिखा हुआ है कि उसने अपने 99 ब्रदर्स को मारा था. लेकिन जब हम अशोक के शिलालेखों को देखते हैं तो रॉक एडिक्ट 5 में लिखा हुआ है कि ही हैज़ अपॉइंटेड ऑफिशियल्स टू हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हाउस होल्ड. तो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग है. हाउ इज़ इट पॉसिबल? सर एक और एग्जांपल था, जैसे कि कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि आफ्टर कलिंग वॉर वही एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया था अशोक में. लेकिन सर एक माइनर रॉक एडिक्ट 1 है जिसमें उसमें लिखा हुआ है कि जैसे 2.5 years तक वो एक मतलब सीरियसली फॉलो नहीं कर रहा था उस चीज़ को, लेकिन बाद में अशोक वाज क्वाइट इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट पूरी तरीके से. तो सर अब ऐसे में हम किस सोर्स पे हमें रिलाई करना चाहिए, क्योंकि दीज थिंग्स आर क्वाइट कन्फ्लिक्टिंग, इनमें कैसे बैलेंस बनाना चाहिए? एंड अकॉर्डिंगली कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जो बुद्धिस्ट ग्रंथों की तरफ जा रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो अशोक के शिलालेखों पे फोकस करना चाह रहे हैं. तो सर इनमें कैसे बैलेंस बनाना चाहिए व्हेन वी आर रीडिंग अपॉन दिस स्पेसिफिक? नहीं, इनमें बैलेंस क्यों बनाना है? बैलेंस बनाने का मतलब क्या हो गया ना, देखो बैलेंस बनाने का मतलब ये हो गया जब हम ये पूछते हैं कि इनमें से हमको किस दिशा में जाना है, तो इसका मतलब वी आर डिसाइडिंग कि हमको किसी एक दिशा में तो जाना है. एज अ हिस्टोरियन बैलेंस नहीं बन सकता क्योंकि these नहीं things are नहीं बन quite सकता ना. conflicting. देखो सुनो, वी हैव टू डिफरेंट एविडेंसेस, राइट, व्हिच आर सेइंग टू डाइवर्जिंग थिंग्स. अशोक हिमसेल्फ will write good things about him, right? So as a researcher you say whatever is there, you say that Ashok is saying this about himself, whereas the Buddhist texts are saying this about him. So we have two different texts, two different evidences which are saying two different things. Let people make their opinions based on what you write. You don't make your own opinion based on what is written, right? यही तो हिस्टोरियंस के साथ प्रॉब्लम यही है कि वो एक ओपिनियन माइंड में लेके उसके आधार पर लिखना करना शुरू करते हैं. ये नहीं करना है. यू प्रेजेंट व्हाट इज देयर, राइट? बोथ ऑफ दीज आर प्राइमरी सोर्सेस. स्क्रिप्चर्स आर आल्सो प्राइमरी सोर्सेस एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर इज आल्सो प्राइमरी सोर्स, है ना? तो प्राइमरी सोर्सेस दोनों ही हैं. अब दोनों में से किसी एक को सही मानेंगे दूसरे को नहीं मानेंगे तो बेईमानी हो जाएगी ना ये. सर लेकिन क्या मतलब ऐसे सोचा जा सकता है जैसे कि बुद्धिस्ट ग्रंथ है ना, वो थोड़े जैसे
बोध ग्रंथ बाद में लिखे गए हैं, अशोक के शिलालेख तो उसी के काल के हैं। और सर दूसरा जितना मैंने नोटिस किया है उतना अशोक अपने शिलालेखों में कहीं भी लाइक ऐसे फ्लॉन्ट करते हुए नहीं नजर आते, जैसे कि बाद के जो राजा हुए हैं, जैसे जो नहीं, थोड़ा ऐसे ना कैसे अपने नहीं आप को फ्लॉन्ट करते? वो डिवाइन देवा तरीके नाम से, पियदस्सी अशोक लिखा है ना उन्होंने, तो गिविंग टाइटल्स टू हिमसेल्फ। नहीं सर, जैसे बाद के जब राजाओं को देखते हैं तो मतलब अशोक ने तो अपने आप को जैसे उस डिविनिटी से जोड़ा, पर बाद के राजाओं ने खुद को ही भगवान एक्सप्रेस किया, जो हाँ, तो कि अशोक इतना से कुछ तो अशोक में। सीखेंगे ना, वो अपने प्रेडिसेसर्स से ही तो सीखते हैं ना लोग। ओके सर। No, it's not like, ठीक है, there could be different opinions, but before making any opinions, we should always try to not be opinionated already. Na? Go through whatever is there and go through whatever is there with an opinion of not being opinionated. एस्टैब्लिश्ड स्कॉलर्स के साथ प्रॉब्लम ये है आज के समय में, और हमको ये मानना पड़ेगा दैट दोज हु आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैव बिकम पार्ट ऑफ वन सेक्ट और द अदर, which has had a devastating impact on the coming generations. है ना, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है उनको सही हिस्ट्री नहीं मिलती है, और हम अभी हायर एजुकेशन में हैं तो हमको ये समझ आ रहा है कि ओपिनियंस हैं वगैरह वगैरह। जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको तो ये नहीं पता ना, दे आर रीडिंग व्हाटएवर इज रिटन। सो प्लीज कम आउट ऑफ दैट मेंटालिटी दैट सर ये ऐसा है तो हमको ऐसा समझना चाहिए। अगर कहीं कुछ लिखा हुआ है, दूसरी जगह कुछ और लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम प्राइमा फेसी तो ये मान के चलें कि दोनों ही सही हो सकते हैं, है ना? यस सर। ठीक है, ओके। आशा है आपको आपके उत्तर मिल गए होंगे। थैंक्स अ लॉट सर। और इसके साथ ही मैं अब आग्रह करना चाहूँगा हमारे दाक्षी के निदेशक अक्षत कुमार भदौरिया जी से कि वो आए और थैंक यू नोट दें। थैंक यू सो मच करते हुए नमस्ते सर। नमस्ते अक्षित। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर। मतलब काफ़ी अच्छा जो इंडियन इकोनॉमी और खासकर इंडियन जो पॉलिटिकल साइंस का जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है फ्रॉम टाइम इमेमोरियल टू प्रेजेंट टाइम्स, कैसे उसको कनेक्ट किया जाए, आपने बहुत अच्छे से बताया। और सर पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक हमने बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स के बहुत सारे सेशंस कर लिए, पर ये पहला सेशन है जिसमें इतना ज़्यादा क्वेश्चन आंसर हुआ है। तो इससे पता लगता है कि हाँ उन्होंने अच्छे से सुना है सभी ने, और उस पर मतलब विवेचना करी है, एक तरीके से जो है ब्रेनस्टॉर्म किया है कि हाँ भाई कुछ कुछ अलग अलग एस्पेक्ट्स में सोचा जा सकता है। तो मतलब यही एक तरीके से लेक्चर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है कि भाई सारे लोगों ने सुना उस चीज़ को और उन्होंने प्रश्न उस पर उठाए, और मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे, और आगे भी हम सर के साथ ऐसा मार्गदर्शन लेते रहेंगे। So sir, thank you so much for taking out time from your busy schedule. ठीक है, thank you so much, thank you. Thank you. थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच टू ऑडियंस ऑल्सो। और हमारी दाक्षी की एक परंपरा है कि हमारा हर एक सत्र वंदे मातरम के साथ समाप्त होता है, या फिर ये कहें कि वंदे मातरम के साथ ही सफल रहता है। तो अब मैं दिशा से आग्रह करना चाहूँगा कि वो वंदे मातरम का गायन करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्यश्यामलां मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहा
भासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस सत्र में जुड़े और आपने इस सत्र को सफल बनाया। वंदे मातरम। जय हिंद, जय दाक्षी।